Good morning, friends. Let's get started. Our today's session will be like this. First session will be for 2 hours, 7 to 9. We'll have a break of 15 minutes. Second session, 9:15 to 11:15, another 2 hours. Then another break of 15 minutes. And then the third session, 11:30 to 1:30. I've divided the entire costing in 3 parts: marginal, standard, and the miscellaneous small topics. What I have planned is in 7 to 9, in first 2 hour session, we'll be able to cover, let us say, marginal. In second session of 2 hours, we'll be able to cover standard, and in the last session, miscellaneous. That is what I have targeted. But let's see what turns out to be, or how much actually we are able to cover. So I'll need your cooperation, and let's hope that this will help you in your exam tomorrow. An important note to you, as it's a quick revision session, right? Please do not waste your time in writing. You won't get the time also, and you are being provided with this. So you have to just focus the attention on revising the things again. It won't be a learning process today. It will be a process of revision. Nothing new you will learn. Everything you have studied, you have already revised once just before the exam. I'm making another effort to quickly revise all the important things. So in the revision session, we cannot solve number of questions, just impossible. But I would like to touch upon all the important aspects. That is what the whole purpose for today's lecture is. May I just request you to please put your mobile phones in silent mode. I have already done so that there is no disturbance in the class. Should we begin? Let's start. We'll begin with marginal costing. Marginal costing is a technique which we popularly use for decision making. It's a decision making tool. This technique starts with the recognition of cost only in 2 parts. Every question of marginal costing, first thing what you have to do is divide the cost in 2 parts: variable cost and fixed cost, without which nothing starts. None of the question can begin without division of cost in 2 parts. So all the cost has to be divided in 2 parts. If you encounter with a semi-variable or semi-fixed cost in the question, then you have to split that semi-variable part also in 2 parts. You have to first separate out the variable and fixed part, and then only the question can start. So that is the fundamental rule for every question of marginal costing. Now, let's see the division of cost, how we will divide the variable and fixed cost. Please remember your original cost sheet format, where we divide the cost in 2 parts, that is prime cost and overheads. Prime cost consists of direct material, direct labor, direct expense, and overheads consists of indirect material, indirect labor, and indirect expenses. Direct material, direct labor, direct expense is a part of prime cost. Indirect material, indirect labor, indirect expense is a part of overheads. If you remember, we used to divide the overheads further in 3 parts: factory overheads, administration overheads, and selling and distribution overheads. This is the popular classification of cost which is used in cost sheet purpose. But for the purpose of marginal costing, we need to divide the overheads in 2 parts, that is variable and fixed overheads. So whether it is factory overheads doesn't matter, but we want factory overheads to be variable and fixed, administration overheads to be variable and fixed, selling and distribution overheads to be variable and fixed. So we will further divide the overheads in 2 parts, that is variable overheads and fixed overheads. Now, this prime cost, being direct cost, by default is variable cost, because it relates directly to the production. So as much you produce, that much cost you will incur. I'm talking about prime cost. So prime cost is always variable. So whenever you encounter in the question, the word is written direct material, direct labor, direct expense, by default it is variable cost. What you need to take care is, overheads you have to divide in 2 parts. And some of the overheads might be semi-variable. So please take care to split it in 2 parts. Now, your prime cost and variable overheads together will form part of your variable cost. And your fixed cost is nothing but your fixed overheads. So fixed overheads is the only fixed cost. And variable overheads plus prime cost is your variable cost. And once we do this, then everything starts. Now let's quickly revise the behavior of cost. How variable cost behaves and how fixed cost behaves vis-a-vis production. And we will check the behavior with respect to per unit variable cost, total variable cost, per unit fixed cost, and total fixed cost.
It means if I change the production, how variable cost per unit will behave, how total variable cost will behave, how per unit fixed cost will behave, and how total fixed cost will behave. Suppose I increase my production, meaning let us say I am at present producing 10,000 units, and from 10,000 I would like to increase it to 15,000. With increase in production, variable cost per unit will, right, variable cost per unit never changes. Variable cost per unit remains constant. Per unit variable cost remains constant. What will increase is total variable cost. It will increase in the direct proportion of increase in production. What will happen with fixed cost per unit with increase in production? Right. Please remember, this total fixed cost remains constant. Fixed cost total remains constant. But if the same total fixed cost is divided by number of units, what will happen? The fixed cost per unit will decrease with increase in production. So as your production increases, fixed cost per unit decreases. However, total fixed cost always remains constant. So fixed cost total remains constant and not per unit. And this is one of the accident areas while solving the question. For example, they may give you a data. For example, the data is given to you in the question at 10,000 units of output. And they say at 10,000 units, following is the cost structure. In that, fixed overheads per unit 5 rupees is given in the cost structure. But please remember, this 5 rupees per unit is calculated at 10,000 units. So you have to first 5 rupees per unit into 10,000, multiply it, convert it into total fixed cost, and now keep that total fixed cost 50,000 constant for further solving. Now in a hurry, what happens? Suppose for next year you are planning the profitability statement, and next year you are planning to produce 15,000 units. So जल्दबाजी में क्या हो जाता है? We multiply 5 per unit into 15,000 units. And if there are 20,000 units, then 5 per unit into 20,000 units. It means what you have done? You have kept fixed cost per unit constant instead of keeping total constant. And the moment you treat fixed cost per unit constant, you have converted it into a variable cost. So you have to be careful. They may not give you a ready-made data. So fixed cost always convert into total, and variable cost, if they give you total, convert it into per unit. And now keep these two constants. And naturally, with decrease in production, your variable cost per unit will remain the constant, but your total variable cost will decrease, and fixed cost per unit will increase with a decrease in production. However, total fixed cost will remain constant. So there are two constants in marginal costing. Variable cost per unit is constant and fixed cost total is constant. Let us quickly revise remaining formulas. All of you are aware of these formulas. The most popular formula of marginal costing is sales minus variable cost is contribution. And contribution minus fixed cost is either profit or loss, as the case may be. Now suppose my contribution is 10 lakh and fixed cost is 6 lakh. So profit will be 4 lakh. Can I say profit is excess of contribution over fixed cost? And if my fixed cost is 12 lakh, contribution is 10 lakh and fixed cost is 12, my loss will be 2 lakh. Can I say loss is excess of fixed cost over contribution? Right. So we can say that excess contribution over fixed cost is profit and excess of fixed cost over contribution is a loss. And these formulas can be reshuffled in the exam to make more number of formulas as per the requirement. Like sales minus variable cost is equal to contribution can be reshuffled as a sales is equal to contribution plus variable cost, or sales minus contribution is variable cost, and so on. That can be handled as and when required. PV ratio, profit volume ratio. It is nothing but contribution to sales ratio. That is contribution upon sales into 100 is popularly known as PV ratio. Please remember, sales is divided in two parts, variable cost and contribution. Can I say sales minus variable cost is contribution, or sales minus contribution is variable cost, and variable cost plus contribution is sales? Now variable cost divided by sales, you will get variable cost ratio, and contribution divided by sales, you will get PV ratio. Now if you observe carefully, these two ratios are complementary to each other. I mean to say, if 60% out of the sales is variable cost, 40% will be PV ratio. If PV ratio is 20%, variable cost ratio is 80%. So from one ratio you can get another ratio, and these two ratios will also remain constant for that question.
So variable cost ratio and PV ratios are not only complementary to each other, they are constant for a given situation or a question. Break-even point, which is the point at which there is no profit, no loss. All of you are aware. It means at BEP, total contribution is equal to total fixed cost. No profit, no loss means total contribution is total fixed cost, because contribution minus fixed cost is a profit. So we can say at BEP, we are earning just sufficient contribution to exactly recover the fixed cost. Management is interested in knowing BEP because the first objective of management is to cross BEP. Because at BEP there is no profit, no loss. Beyond BEP you start earning profit, and below BEP you are into losses. So management is very well interested in knowing that BEP. A firm starts earning profit only after crossing BEP. From this logic, can we say BEP lower is better? Very nice. So BEP lower is better, not higher. Because the moment you cross BEP, you will start earning profit. So BEP lower, you are likely to reach to the profit area much faster. Take here the example of your examination. The BEP in your examination is 50% marks, isn't it? In the BCom examination, it was I think 35-40%. So the BEP was lower. So we used to cross it faster. Right? Now it is 50%, and some of the post-qualification exams, which you can appear after doing chartered accountancy. One insurance related exam has BEP of 60% marks for passing, and ISA, Information Systems Auditor, it has got passing marks required are 75%. So BEP is raised to 75%. So it's more difficult to cross BEP. From that you can understand BEP lower is better, so that soon you can enter into the zone of profit. BEP can be calculated or expressed in three different ways. It can be either expressed in number of units to be sold, or sale value in rupees, or sales in percentage capacity. Please remember, BEP is always a sales. Reason why I'm saying sales and not production. Most of the time production and sales is one and the same most of the time. But please remember, to achieve BEP you need to earn sufficient profit to recover the fixed cost. And profit is earned only when you sell the goods, not just by producing the goods. I might have produced the goods, but they are lying in my godown. Until and unless I sell them, I won't earn profit. So BEP by default is sales, by default. But this sales can be calculated either in units, or in rupees, or in percentage capacity. It means out of your 100% capacity, at what percent capacity you should produce and sell so that you can achieve BEP, or how many units you should sell to achieve BEP, or what should be your sales revenue in rupees to achieve BEP. And the formula, I am discussing all in one formula to calculate all three of them. Numerator is always total fixed cost. In the denominator, if you take contribution per unit in the denominator, then the answer will be in units. All of you are aware. If I take the denominator as PV ratio, the answer will be in rupees sales. And if I take the denominator as contribution at 1% capacity, the answer will be in percentage capacity. At what percentage capacity I should operate to achieve BEP. Margin of safety. Sales above BEP sales is your margin of safety sales. So margin of safety is also sales, like BEP is also sales. So sales in excess of BEP is your margin of safety sales. You can say total sales minus BEP sales. Total sales यानी आपका actual sales. Whatever is your actual sales minus BEP sales is your margin of safety sales. Then there is a margin of safety ratio. It means margin of safety sales can be presented in a percentage format, which is known as margin of safety ratio. That is margin of safety sales upon total sales into 100. एक example के ले लेते हैं. In your exam, the BEP we have said is 50%. And suppose you happen to score 78 marks in this paper of advanced management accounting. कम तो नहीं बोल दिया ना? So 78 is actual score. 50 was BEP score. So excess marks are 28. That is margin of safety. Now if you want to calculate a margin of safety ratio, then it will be 28 upon 78, not 100. 28 upon 78 into 100. So you'll get percentage. Because you have scored 28 excess out of 78. तो denominator आपका वो जो actual total sales है वो है. So 28 is your numerator, 78 actual score is denominator, and then you express
that I'm enjoying a safety margin of so much percent, right? That is margin of safety ratio. Now, total sales in two parts, BP sales and margin of safety sales. If I divide BP sales by total sales, I will get BP ratio. And if I divide margin of safety sales by total sales, I will get margin of safety ratio, which we have seen just now. Can't I say both these are complementary to each other? Total sales is having two parts. One is BP, one is margin of safety. It means if in a given question, margin of safety ratio is 40%, then BP ratio will be 60% of total sales. If BP is 75%, margin of safety is 25%. Sometimes some questions are based on this logic only. So from 1% you should go to another percent and solve the question. And please remember, at BP, whatever contribution is you earn is exactly able to recover your fixed cost. That also we'll see now in the next slide. There is one formula. Net profit is equal to margin of safety sales into PV ratio. This is one formula. Now, generally when we multiply margin of safety, generally when we multiply sales with PV ratio, we should get contribution. Generally when we multiply sales with PV ratio, we should get contribution. But margin of safety sales, when multiplied by PV ratio, you directly get net profit. Directly get net profit. How and why? Let us see. And first of all, this formula can also be reshuffled to get two more formulas. Like net profit upon margin of safety sales can give you PV ratio, or net profit upon PV ratio can give you margin of safety sales. So that has to be used as and when required. Now let's try to understand the logic which goes behind this. Total sales into PV ratio will be your total contribution. Total actual sales into PV ratio will be total contribution. I will divide it total sales in two parts, BP sales and margin of safety sales, and I will multiply both of them by PV ratios. By doing this, what will happen? I will get contribution at BP sales, and here I will get contribution at margin of safety sales. So I have divided the total contribution in two parts. The contribution which I have earned from BEP sales and contribution which I have earned from margin of safety sales. Now, the contribution which I earn from BEP sales goes in recovering the fixed cost. Whatever I have earned from BEP sales has gone in recovering the fixed cost. Now your fixed cost got recovered here. Now whatever contribution I have earned in margin of safety sales, that entire contribution is left with me as net profit, because my entire fixed cost is recovered from here. So here I don't have to deduct any fixed cost. That is why margin of safety sales into PV ratio directly becomes net profit. This is the logic behind this formula. You can see it like this also. Total sales into PV ratio is total contribution. Total contribution, this minus this fixed cost, is also profit now. Total contribution minus fixed cost is also profit. So whatever is earned by margin of safety sales directly results into net profit, because BP sales has already taken care of your fixed cost. Some shortcut formulas which can be used to solve the questions. Now I'm just taking some data for explaining the shortcut formulas. I'm just assuming some data. Now everything is available with you in the printout, don't worry. Just try to understand. I'm taking the data for 10,000 units in first row. I'm taking the data of 15,000 units in the second row. And in the third row, I'm taking the difference between the two. So these are 10,000 and 15,000 units. The difference is 5,000 units. Now, my selling price is 10 per unit. 10,000 units into 10 will be 1 lakh. 15,000 units into 10 will be 1,50,000, right? I'm assuming variable cost as 6 rupees per unit. So 10,000 into 6 naturally 60,000, and 15,000 into 6 will be 90,000. Then 10 minus 6, my contribution is rupees 4 per unit. So 4 per unit into number of units, 10,000 into 4 is 40,000, and 15,000 into 4 is 60,000. Fixed cost I have assumed 25,000, which will remain constant irrespective of number of units produced. Now check this, contribution minus fixed cost is this profit, and this contribution 60,000 minus this fixed cost is this profit. And I want total cost now. Total cost is this variable cost plus this fixed cost, that is 60,000 plus 25,000 is 85,000, and 90,000 plus 25,000 is 1,15,000. And now the difference of all these, you will notice difference in contribution is 20, difference in fixed cost is 0, difference in profit is 20,000, and difference in total cost is 30,000. So the data is captured by you. Data will remain on the screen. Now we'll go to the formulas one by one.
There's a formula to calculate variable cost per unit, and that goes as change in total cost upon change in output. Change means difference in total cost upon difference in output. Now see how this formula works. This is your difference in total cost, is it? This is your difference in output, that is 5,000 units. Now 30,000 divided by 5,000 if you do, you will get this 6 rupees per unit. It means we get variable cost. Now how this formula works, or why this formula works? Please remember, total cost consists of only two parts, variable and fixed, out of which fixed cost doesn't change. See here, there is no change in fixed cost. So what is changing is only variable cost. What has changed is only variable cost. So change in variable cost results into change in total cost. What is changing is only variable cost because fixed cost remains constant. तो देखो ये जो सेंटेंस है न्यूमरेटर में चेंज इन टोटल कॉस्ट, इसको थोड़ी देर के लिए मैं कर देता हूं, ये चेंज इन है वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में चेंज हो रहा है ना, और चेंज इन आउटपुट यानी यूनिट्स. अब ये चेंज वर्ड को हटा दो, दोनों तरफ से कॉमन है, तो आपका फॉर्मूला बचा वेरिएबल कॉस्ट अपॉन आउटपुट. अब वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो शायद वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट ही तो मिलेगा आपको. एंड दिस ट्रिक इज यूज्ड टू स्प्लिट द सेमी वेरिएबल कॉस्ट. सेमी वेरिएबल कॉस्ट जब दी जाए आपको तो उसमें एक पार्ट वेरिएबल और एक फिक्स्ड है, तो आपको दो एक्टिविटी पे सेमी वेरिएबल कॉस्ट दी रहेगी, तो आप उसका डिफरेंस ले लो, चेंज इन कॉस्ट. वो दो एक्टिविटी पे जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट की वजह से, डिवाइडेड बाय आप आउटपुट ले लो तो आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगी. एक बार वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिल गई तो विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यू कैन फाइंड आउट द फिक्स्ड कॉस्ट आल्सो. This has to be done in many cases while solving the question because you have to first split the variable and fixed cost. So you can use the shortcut formula. Let us check the formula of contribution per unit. That goes as change in profit upon change in output. Now see here, change in profit is 20,000 and change in output is 50,000. Correct? Change in profit 20,000, change in output 5,000. Now 20,000 upon 5,000 will be 4. So I think this is 4 rupees is the contribution per unit. It means this formula works. Now once again you will observe, check this. Contribution minus fixed cost is your profit, and this contribution minus this fixed cost is your profit. Correct? Now fixed cost is not changing. What I am saying is contribution minus fixed cost is profit, out of which fixed cost is constant. So what is changing is only contribution, and change in contribution is resulted into change in profit. So you will notice that this is the change in contribution, and this change in contribution has resulted into change in profit. तो फॉर्मूला है लिखने के लिए चेंज इन प्रॉफिट, ये वर्ड को हटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, समझो इट इज चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट. अब ये चेंज वर्ड को हटा दो, कॉमन फॉर्मूला क्या बचा, कंट्रीब्यूशन अपॉन आउटपुट. अब कंट्रीब्यूशन को आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो नेचुरली कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ आउटपुट मिलेगा. तो लिखने के लिए फॉर्मूला चेंज इन प्रॉफिट है, समझने के लिए वो चेंज इन कंट्रीब्यूशन. अब सेम लॉजिक फिर से आगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशियो, सेम लॉजिक. पीवी रेशियो में चेंज इन प्रॉफिट 20,000, ये आपका न्यूमरेटर. चेंज इन सेल्स है ना, ये वैल्यू ले रहा हूं अब मैं. चेंज इन सेल्स इज दिस 50,000. 20,000 अपॉन 50,000 इंटू 100 यू विल गेट 40%. 40% यहां से भी आ सकता है, ये कॉन्ट्रीब्यूशन 4 पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस 10. सो पीवी रेशियो इज 40%. फिर से वही लॉजिक, नो चेंज. ये चेंज इन प्रॉफिट लिखने के लिए, समझने के लिए वो क्या है, चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन, यही है ना वो. ये 20,000 जो डिफरेंस है वो यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो फॉर्मूला बन गया आपका चेंज इन प्रॉफिट की जगह चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100. ये चेंज वर्ड हटा दो. अब फॉर्मूला बचा कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. शायद पीवी रेशियो का फॉर्मूला ही बच गया, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. एंड विद द सेम लॉजिक वेरिएबल कॉस्ट रेशियो. वेरिएबल कॉस्ट रेशियो में फिर से चेंज इन कॉस्ट दैट इज दिस 30,000 और ये चेंज इन सेल्स दैट इज योर 50,000. नाउ 30,000 अपॉन 50,000 you will get 60%. Now once again this change in cost is due to change in variable cost. This change in variable cost is reflected here on change in
टोटल कॉस्ट। तो ये फॉर्मूला फिर से क्या होगा, चेंज इन कॉस्ट में इट इज चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, ये हटा दो, सो इट इज वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इन 200, सो यू विल गेट वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, इज इट। 4 फॉर्मूले थे, फिर से एक बार, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट मिलेगा, उसी चेंज इन कॉस्ट को डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स कर दो, आउटपुट की जगह यूनिट्स की जगह सेल्स ले लो, तो आपको वेरिएबल कॉस्ट रेशियो मिल जाएगा। फिर चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन आउटपुट करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट यानी चेंज इन कंट्रीब्यूशन हो रहा है, डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ आउटपुट मिलेगा, और वही चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स कर दोगे तो पीवी रेशियो मिलेगा। ठीक है, इससे आंसर जल्दी आएगा और कुछ नहीं। फैमिली ऑफ बीईपीज, बीईपी में टोटल 4 टाइप के बीईपीज हैं। एक तो जो हम ऑलरेडी देख चुके, देयर आर 4 मेंबर्स इन द फैमिली, आई कॉल देम एज फैमिली ऑफ बीईपी। कर्ता ऑफ द फैमिली से आपकी मुलाकात होगी, दैट इज नॉर्मल बीईपी। क्वेश्चन में भी पूछा है जस्ट कैलकुलेट बीईपी, बीईपी है नहीं ये वाला आपका, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला, दैट इज बाय डिफॉल्ट योर बीईपी। लेकिन 3 बीईपी और है, पढ़े आपने, एक कैश बीईपी, that is the break even point once again at which your cash profit or cash loss is 0, meaning आपकी जो कैश फिक्स कॉस्ट लगी है, कैश फिक्स कॉस्ट, वो यदि रिकवर हो गए, सो यू हैव रीच टू कैश बीईपी। तो नॉर्मल और कैश बीईपी में क्या फर्क हुआ, सपोज माय टोटल फिक्स कॉस्ट इज 1 लाख टोटल, आउट ऑफ विच माय कैश फिक्स कॉस्ट इज ओनली 60,000, तो 40,000 क्या हुआ, समझो डिप्रिसिएशन और एनी अदर नॉन कैश आइटम, जो हम डेबिट तो करते पीएनएल को लेकिन कैश में खर्चा नहीं करते, वो 40,000 थे। तो 1 लाख इज टोटल फिक्स कॉस्ट, उसमें से 60,000 कैश में लगा, 40,000 नॉन कैश था, तो 60,000 जो फिक्स कॉस्ट कैश में लगी वो रिकवर करना है मुझे, यानी आई शुड अर्न सफिशिएंट कंट्रीब्यूशन टू रिकवर द कैश फिक्स कॉस्ट। वो रिकवर करने के लिए जो एक्टिविटी पे ऑपरेट करना पड़ेगा मुझे, दैट इज योर कैश बीईपी। इसका मतलब ये भी हुआ कि आप जब चलना चालू करेंगे तो पहले क्या अचीव करेंगे, कैश बीईपी, पहले आपकी कैश फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगी, फिर और थोड़ा सा चलना पड़ेगा टू रिकवर दैट नॉन कैश फिक्स कॉस्ट, देन यू विल अचीव योर नॉर्मल बीईपी, और उसके आगे यू आर इन द जोन ऑफ प्रॉफिट। फिर एक है आपका कंपोजिट और ओवरऑल बीईपी। दिस बीईपी इज कैलकुलेटेड व्हेन वी प्रोड्यूस एंड सेल मल्टीपल प्रोडक्ट्स। Sometimes the company may produce and sell multiple products. So your company is producing and selling 4 products, A, B, C and D. Generally, when we calculate this normal BEP, please remember normal BEP is calculated for single product. And this composite or overall BEP is one and the same. Normal BEP है, but it is calculated for all products together for the entire company. तो आपने सिर्फ प्रोडक्ट ए का बीईपी निकाला तो नॉर्मल बीईपी, सिर्फ बी का निकाला तो नॉर्मल बीईपी, और चारों का एक साथ निकाला पूरे कंपनी का, तो वो हो गया overall BEP, also known as composite BEP. So technically number 1 and number 3 is same, फर्क इतना ही है, ये सिंगल प्रोडक्ट के लिए, ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए। एंड देन कॉस्ट बीईपी, इससे तो बहुत सारे डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, याद आ रहा तो। कॉस्ट बीईपी इज द पॉइंट एट विच टोटल कॉस्ट अंडर द 2 अल्टरनेटिव्स इज एग्जैक्टली द सेम। It is the point at which total cost under the 2 alternative is same. For example, machine A और machine B, ये 2 ऑप्शन है आपके पास। You can manufacture the goods either on machine A or you can manufacture the goods either on machine B. अब आपको ऐसी क्वांटिटी ढूंढ के निकालना है, नंबर ऑफ यूनिट्स एट विच either you operate machine A or operate machine B, the total cost of operating will be exactly same. उस पॉइंट को, उस नंबर ऑफ यूनिट्स को आप क्या बुलाएंगे, कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट। Cost BEP is the point at which total cost under the 2 alternative is same. थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। कैश बीईपी, इसका फॉर्मूला आपका टोटल कैश फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करेंगे तो आंसर यूनिट्स में आएगा, पीवी रेशियो से डिवाइड करेंगे तो आंसर रुपीज में आएगा, कैश बीईपी। अब ये देखना कंपैरिजन नॉर्मल और कैश बीईपी का। सब जो मैंने 0 यूनिट से चलना चालू किया तो पहले मेरी मुलाकात होगी कैश बीईपी से, क्योंकि कैश बीईपी के लिए फिक्स कॉस्ट कम रहेगी ना। न्यूमरेटर में कैश बीईपी के लिए सिर्फ कैश फिक्स कॉस्ट ली आपने और नॉर्मल बीईपी के लिए टोटल फिक्स कॉस्ट ली, न्यूमरेटर कम रहा तो आंसर कम आएगा। तो कैश बीईपी का आंसर कभी भी नॉर्मल बीईपी से कम आएगा, यानी पहले आप क्या अचीव करेंगे, कैश बीईपी, बाद में अचीव करेंगे नॉर्मल बीईपी।
अब इस रेंज में 0 यूनिट से कैश बीपी के बीच में, व्हेन यू हैव नॉट येट अचीव्ड कैश बीपी ऑल्सो, इस रेंज में यू आर इनटू कैश लॉसेस। तो ये जो रेंज है इसमें यू आर सफरिंग कैश लॉसेस। आपने इसको क्रॉस कर दिया कैश बीपी को, लेकिन नॉर्मल बीपी क्रॉस नहीं हुआ है, यानी आप इस रेंज के बीच में हो, ये दोनों के बीच में, यानी कैश बीपी क्रॉस हो गया तो कैश प्रॉफिट में तो आ गया, आपका जो कैश आउटफ्लो था वो तो रिकवर हो गया, लेकिन अभी पूरी फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं हुई है, इट मींस यू आर इन बुक लॉसेस। तो दिस इज द रीजन वेयर you are generating cash profit but books of account will still show the losses. और once you reach into this area, once you cross the normal VP, तो आपकी total fixed cost recover हो गई, बुक्स में जितनी fixed cost थी सब recover हो गई, so your books of accounts will start showing the profit. So you are into book profit area in this range. ये आपका composite या overall VP. In case if the concern is dealing in several products, a composite break-even point can be computed using the following formula. फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आपको पहले ये निकालना पड़ेगा composite PV रेशियो, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल्स इनटू 100, यानी पूरे कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूशन पूरे कंपनी का सेल्स इनटू 100. फॉर एग्जांपल आई सेड देयर आर 4 प्रोडक्ट्स, तो चारों प्रोडक्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन ले लेने का डिवाइडेड बाय चारों प्रोडक्ट का सेल, तो आपको क्या मिल गया ओवरऑल PV रेशियो. एक बार वो मिल गया तो यहाँ पर यूज करने का डिनोमिनेटर में. So your total fixed cost for the entire company divided by overall PV ratio, you will get overall BP for the entire company in rupees. Cost BP. As we have discussed, it is the point at which total cost of two alternatives is exactly the same. Cost BP is used in decision making between the two alternative. एक बार वो cost BP निकाल लिया तो उससे decision making में मदद मिलती है. कैसे? We will see through an example. Below cost BP, यानी आपका जो cost BP पॉइंट है, समझो cost BP आया 15,000. फिर एक एग्जांपल लेते हैं, cost BP आया 15,000, तो 15,000 के नीचे वाला जो एरिया है उसमें एक अल्टरनेटिव बेटर है, और 15,000 के ऊपर वाला जो एरिया है उसमें दूसरा अल्टरनेटिव बेटर है. Now generally alternative with lower fixed cost is better on lower side below cost BP, and above cost BP यानी cost BP के ऊपर वाले एरिया में alternative with lower variable cost per unit is better. अब ये इतनी जल्दी से क्लिक नहीं हुआ शायद आपको, तो एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज वी हैव टू डिसाइड बिटवीन द परचेस ऑफ 2 व्हीकल्स, राइट. ये बहुत पॉपुलर एग्जांपल मैं कोट करता हूं, एक स्कूटर और मोटरसाइकिल, ये 2 व्हीकल में से एक खरीदना है, दोनों नहीं. Decision is between 2 alternatives. You have to go for one. Annual fixed cost for a scooter is let us say 5,000. उसमें उसका depreciation आ गया, interest आ गया, right? Insurance आ गया, tax आ गया, vehicle tax 5,000 per annum. और वेरिएबल कॉस्ट इज 1.2 पर किलोमीटर, वो बेसिकली पेट्रोल का कॉस्ट है आपका, ये स्कूटर वाले अल्टरनेटिव का. और मोटरसाइकिल थोड़ी कॉस्टली आती है, तो उसमें फिक्स कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा ले रहा हूं मैं. एनुअल फिक्स कॉस्ट है 8,000, रनिंग कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है डिप्रिसिएशन, फिर से इंटरेस्ट, इंश्योरेंस, टैक्स वो, और वेरिएबल कॉस्ट है जो पेट्रोल पे खर्चा लग रहा है वो मैंने लिया 0.8 पर किलोमीटर. अब ध्यान रखना, स्कूटर में फिक्स्ड कॉस्ट कम है, मोटरसाइकिल में फिक्स कॉस्ट ज्यादा है. फिक्स कॉस्ट है, परचेज कॉस्ट नहीं है, इट इज फिक्स कॉस्ट पर एनम. और स्कूटर में वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है क्योंकि उसकी फ्यूल एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं है, इट गिव्स यू लेसर माइलेज. मोटरसाइकिल गिव्स यू अ बेटर माइलेज. तो मोटरसाइकिल की वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर कम है. इसका मतलब एक एडवांटेज स्कूटर के पास है, कौन सा? फिक्स कॉस्ट कम है. दूसरा एडवांटेज मोटरसाइकिल के पास है, कौन सा? वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर कम है. और ये 1 साल का खर्चा है फिक्स कॉस्ट. तो मैं एनुअल बेसिस पे कॉस्ट बीपी निकालूंगा. So let's calculate cost BP. Let us assume that annual distance traveled is n kilometers, at which total cost per annum is same for both the alternative. Total cost in a variable plus fixed together for n kilometers. और वो जो आंसर आएगा n किलोमीटर का वो हमारा कॉस्ट BP है. अब देखना, स्कूटर के लिए एक इक्वेशन बनाया मैंने. ये n किलोमीटर्स इंटू 1.2 पर किलोमीटर, ये वेरिएबल कॉस्ट थी, प्लस फिक्स कॉस्ट थी 5,000. मोटरसाइकिल में वेरिएबल कॉस्ट थी 0.8 पर किलोमीटर इंटू n किलोमीटर, तो ये हो गई टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट 8,000, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड. इसको सॉल्व यदि किया तो आपका आंसर आ जाता, राइट. ये 1.2n, ये -0.8n, और इधर 8,000 माइनस 5,000,
तो ये आ गया 3000 डिवाइडेड बाय 0.4। आई होप कैलकुलेटर लाए, क्या लाए हो तो यूज कर सकते कभी तो भी। लिखने का काम बचा दिया है मैंने। Right. So it will be 3000 divided by 0.4. That will be 7500 kilometers per annum. एक बात और याद आई तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप बीपी का आंसर निकालते हैं, कॉस बीपी का निकालते हैं, किसी का भी निकालते हैं, तो वो आंसर उतने ही पीरियड का आता है जितने पीरियड की फिक्स्ड कॉस्ट है, ये ध्यान रखना। यदि फिक्स कॉस्ट पर एनम है तो सभी आंसर पर एनम बेसिस पे आएंगे। यदि फिक्स कॉस्ट पर क्वार्टर है तो सभी आंसर पर क्वार्टर के आएंगे। फिक्स कॉस्ट इज अ पीरियड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज अटैच्ड टू द टाइम पीरियड, एंड वेरिएबल कॉस्ट इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट विच इज अटैच्ड टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। इसलिए वेरिएबल कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट भी बुलाते हैं और फिक्स्ड कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट बुलाते हैं। तो फिक्स कॉस्ट जितने पीरियड की, आंसर उतने पीरियड का आता है। जैसे यहां पर फिक्स कॉस्ट पर एनम थी, तो आपका जो डिस्टेंस आया 7500 किलोमीटर से पर एनम आया। Now what does it mean? That exact 7500 kilometers per annum if you travel, whether you travel on a scooter or whether you travel on a motorcycle, the running cost or operating cost of both the vehicles will be exactly same. If cost is same, the point is BP, cost BP. अब इसको डिसीजन मेकिंग के लिए कैसे यूज करते हैं, that is more interesting. उसके पहले एक शॉर्टकट फॉर्मूला देखते हैं। ये देखो, सॉल्व करते समय आपके एक ध्यान में आया होगा, ये 3000 डिवाइडेड बाय 0.4 से आंसर आया ना। 3000 क्या है, डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट है क्या, और ये 0.4 क्या है, डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर। इस क्वेश्चन में पर किलोमीटर, किसी में पर यूनिट रहेगा, किसी में पर आवर रहेगा। उसी से शॉर्टकट फॉर्मूला बनाया, डिफरेंशियल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंशियल वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर। लेकिन ये फॉर्मूले का लॉजिक पहले देखा हमने। वो इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो उसी के अंदर ये लॉजिक है, डिफरेंशियल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंशियल वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर करेंगे तो आंसर किलोमीटर में आएगा। किसी क्वेश्चन में पर यूनिट दिया रहेगा तो नंबर आंसर विल बी इन यूनिट्स, और डिनोमिनेटर में डिफरेंस पर आवर रहेगा तो आंसर विल बी इन आवर्स नेचुरली। सो दैट इज डायरेक्ट फॉर्मूला, यू कैन यूज दिस, दिस इज अलाउड इन द एग्जाम। सो वंस अगेन यू गेट द सेम आंसर 7500 किलोमीटर्स पर एनम। इसका इंटरप्रिटेशन देखना है कि हाउ इट इज यूज फॉर डिसीजन मेकिंग, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। So let us see the interpretation of cost BP. ये आपका cost BP है 7500 किलोमीटर पर एनम। मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा था कि बिलो cost BP यानी ये वाली जो रेंज है, इसमें एक अल्टरनेटिव बेटर है, और ये वाली जो रेंज है अबव cost BP वाली, इसमें दूसरा अल्टरनेटिव बेटर है। और उसका रूल है, यहां स्कूटर बेटर आएगा, यहां मोटरसाइकिल। लेकिन क्यों का जवाब है, अल्टरनेटिव विथ लोअर फिक्स्ड कॉस्ट इज बेटर ऑन लोअर साइड, यानी बिलो BP, बिलो cost BP। An alternative with lower variable cost is better on higher side. Cost BP पहले कैलकुलेट कर लेने का, उसके नीचे वाली रेंज में अल्टरनेटिव विथ लोअर फिक्स्ड कॉस्ट इज बेटर, ऊपर वाली रेंज में अल्टरनेटिव विथ लोअर वेरिएबल कॉस्ट इज बेटर। यदि और समझना हो तो क्यों, थोड़ा ध्यान देना, वो डेटा यदि दिमाग में आपके हो तो। स्कूटर की फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी 5, मोटरसाइकिल की 8, और वेरिएबल कॉस्ट 1.2 और 0.8, बस इतना दिमाग में रखना। यहाँ 0 किलोमीटर से हम दोनों की रेस लगाएंगे, 0 किलोमीटर से दोनों व्हीकल की रेस लगाएंगे, लेकिन रेस स्पीड वाली नहीं, कॉस्ट वाली लगाएंगे, कॉस्ट की रेस। हाँ, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, 0 किलोमीटर से दोनों व्हीकल की हम रेस लगा रहे कॉस्ट की। 0 किलोमीटर पे दोनों में वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगी होगी, 0, लेकिन फिक्स कॉस्ट स्कूटर में लगी 5000, मोटरसाइकिल में लग गई 8000। तो जब ये रेस चालू हुई तो स्टार्टिंग में एडवांटेज किसके पास था, स्कूटर के पास, क्योंकि उसकी फिक्स कॉस्ट कम थी। आर यू गेटिंग इट? तो 0 से जब वो रेस चालू होगी तो एडवांटेज किसके पास रहेगा, अल्टरनेटिव विद लोअर फिक्स्ड कॉस्ट वाले के पास एडवांटेज था, स्टार्टिंग एडवांटेज। सो स्कूटर वाज बेटर एज फार एज कॉस्ट इज कंसर्न। लेकिन मोटरसाइकिल के पास दूसरा एडवांटेज था, उसमें वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर कम थी। कितने से कम थी, 1.2 माइनस 0.8 इज 0.4। तो जैसे जैसे आप ट्रैवल चालू करेंगे 0 किलोमीटर के आगे, ऑन ईच किलोमीटर ट्रैवल्ड मोटरसाइकिल विल स्टार्ट सेविंग 0.4 पर किलोमीटर, 0.4 पर किलोमीटर। अब मोटरसाइकिल में डिसएडवांटेज किसका था, फिक्स कॉस्ट का। एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट कितनी लगी थी, 3000। उसने वो सेविंग करके रिकवर करनी चालू की, 0.4 पर किलोमीटर सेविंग से वो फिक्स कॉस्ट रिकवर होनी चालू होगी।
तो जो 3000 एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट लगी थी वो रिकवर करने के लिए उसको कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, 3000 डिवाइड बाय 0.4, वही लॉजिक है वो। तो 7500 किलोमीटर पे मोटरसाइकिल ने वो पूरा जो एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट लगा था वो रिकवर करके दे दिया आपको। तो 7500 किलोमीटर पे वो दोनों इक्वल पे आ गए। लेकिन यदि आप इसके आगे ट्रैवल करते ही रहे, किसके 7500 के आगे, तो भी मोटरसाइकिल में सेविंग तो होता ही रहेगा ना पर किलोमीटर 0.4। तो इसके आगे मोटरसाइकिल विल स्टार्ट सेविंग 0.4 पर किलोमीटर। सो अल्टरनेटिव विथ लोअर वेरिएबल कॉस्ट विल बिकम चीपर बियॉन्ड दिस। इस टाइप के जनरली क्वेश्चन आते हैं, सेमी ऑटोमेटिक मशीन, ऑटोमेटिक मशीन, विच वन इज बेटर। अरे तो कट ऑफ पॉइंट निकाल लेने का और उससे डिसाइड करने का। अब डिसीजन कैसे लेने का, यदि हमारा आंसर इसमें 7500 किलोमीटर पर एनम आया है, अब आपकी एक्चुअल एक्टिविटी क्या है वो देखो। मैं सपोज आपको लगता है कि पर मंथ आई विल ट्रैवल मैक्सिमम 500 किलोमीटर पर मंथ, इन अ ईयर यू विल ट्रैवल ओनली 6000 किलोमीटर। तो आपका ट्रैवल आ रहा है बिलो 7500, सो यू शुड बाय अ स्कूटर। You should buy a scooter today. Depending upon your estimated travel comes in which range. वो रेंज आती है, दो रेंज में कौन सा अल्टरनेटिव बेटर है। और आपको लगता है नहीं मिनिमम 1000 किलोमीटर पर मंथ तो ट्रैवल हो ही जाता है मेरा, यानी साल में 12000 किलोमीटर ट्रैवल हो जाता है, तो आप कॉस्ट बीपी के ऊपर चले गए। देन यू शुड बाय अ मोटरसाइकिल टुडे। So you can decide depending upon your future expected level of activity, that your activity will fall in which range. Depending upon that you can buy like a semi-automatic machine or automatic machine or scooter or motorcycle. इसका ये ओपिनियन नहीं है, कभी कभी स्टूडेंट्स लोगों ने ये ओपिनियन दिया है कि सर इसका मतलब ऐसा होगा कि पहले हम स्कूटर पे चलेंगे 0 किलोमीटर से कहां तक, 7500 तक, और जब 7500 किलोमीटर स्पीडोमीटर में दिखाई देंगे तो स्कूटर को बाजू में रखेंगे, फिर मोटरसाइकिल पे चलेंगे, यानी 2 गाड़ी खरीदेंगे आप। आपको डिसीजन एक का लेना है, वो आज ही लेना है, वेदर यू विल बाय स्कूटर और अ मोटरसाइकिल डिपेंडिंग अपॉन एस्टिमेटेड ट्रैवल। तो ये तो सिर्फ कट ऑफ रेंज है, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि इस रेंज में स्कूटर से ट्रैवल करो और इस रेंज में मोटरसाइकिल से ट्रैवल करो, कोई भी एक चीज लेना है अपने दोनों में से। एनीवे, नाउ वी गो टू द प्राइसिंग डिसीजन। डिसीजन रिगार्डिंग फिक्सेशन ऑफ सेल्स प्राइसेस। ये मैं मार्जिनल कॉस्टिंग वाले प्राइसिंग डिसीजन बोल रहा हूं, मार्जिनल कॉस्टिंग वाले। डिसीजन रिगार्डिंग फिक्सेशन ऑफ सेल्स प्राइस कैन बी टेकन यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग थ्योरी। बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, राइट, व्हाट शुड बी द प्राइस विच शुड बी कोटेड टू द न्यू कस्टमर, या कस्टमर ने आपको कोई प्राइस का ऑफर दिया है, वेदर दैट प्राइस ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट, राइट। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड टू प्राइसिंग ऑफ योर प्रोडक्ट। उसमें सेल्स प्राइस कैन बी कैलकुलेटेड एज वेरिएबल कॉस्ट प्लस डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन। मेरे ख्याल से वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन इज सेल्स ना, सो वेरिएबल कॉस्ट प्लस डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन कैन बी अ सेल्स प्राइस। इसको हम इंक्रीमेंटल अप्रोच बोलते हैं। नए कस्टमर का ऑर्डर मिलने वाला है, उसमें आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या क्या लगेगी। इंक्रीमेंटल कॉस्ट मेजॉरिटी टाइम इज वेरिएबल, बिकॉज ओनली वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस। लेकिन किसी क्वेश्चन में उस कस्टमर के लिए कुछ एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट लग रही होगी तो वो भी ले लेना इंक्रीमेंटल कॉस्ट में, प्लस आपको कुछ डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो उसमें ऐड कर देना, यू विल गेट द सेल्स। बस सिंपल सी बात है, किसी कस्टमर का ऑफर आया है, उसमें मुझे एक्स्ट्रा खर्चा कितना लगेगा और मुझे उससे कितना प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है वो उसमें ऐड कर दो। आपकी एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट छोड़ दो। लेकिन इन एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट क्यों छोड़ दो, क्योंकि कस्टमर ने ऑर्डर दिया क्या और नहीं दिया क्या, वो तो कॉस्ट वैसे भी लगने ही वाली थी। तो कस्टमर की वजह से जो कॉस्ट लग रही है वो मेजॉरिटी इट इज वेरिएबल कॉस्ट प्लस आपका डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन, एंड यू गेट द सेल वैल्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, विल गेट द सेल्स प्राइस। आई होप यू कैन इमेजिन। We should try to quote a competitive sales price to our prospective customer in order to earn some incremental profit. कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल जाए तो भी हमारा काम हो जाता है। एक जस्ट एग्जांपल कोट करने के लिए, सपोज हमारे प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट है 50 रुपीज, टोटल कॉस्ट, उसमें 30 रुपीज है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और 20 रुपीज है फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। तो 50 रुपीज टोटल कॉस्ट है। हम जनरली उस प्रोडक्ट को बेचते 70 रुपीज में, 20 रुपीज प्रॉफिट ऐड करने के बाद। हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है टू प्रोड्यूस एंड सेल 1 लाख यूनिट्स, प्रोडक्शन कैपेसिटी, बट एट प्रेजेंट वी आर मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ओनली 60,000 यूनिट्स, सो देयर इज अ सरप्लस कैपेसिटी लेफ्ट फॉर 40,000 यूनिट्स। अभी कोई बड़ा कस्टमर मेरे पास आता है और वो बोलता है मुझे 25,000 यूनिट्स होना, मेरे पास सरप्लस कैपेसिटी कितने की बची है, 40,000, ही इज आस्किंग फॉर 25,000 विच आई कैन इजीली सप्लाई विद इन अवेलेबल कैपेसिटी, बट बीइंग अ बिग कस्टमर और लार्ज कस्टमर, he says that I want a very competitive price from you. आपने बोला एक काम करो, हम 70 रुपीज में लोगों को बेचते हैं, आपको 60 में दे देंगे।
70 इज अवर नॉर्मल सेलिंग प्राइस, विल ऑफर यू एट 60। वो बोला 60 छोड़ो, ये देखो मेरे पास प्राइस कोटेशन है 40 रुपीज वाला, मेरे पास प्राइस कोटेशन है दूसरे सप्लायर का 40 रुपीज में, 40 रुपीज में देते क्या? तो आप बोलेंगे यार 50 रुपीज तो कॉस्ट ही है हमारी, 40 रुपीज में देंगे तो नुकसान हो जाएगा हमारे को 10 रुपए। शायद नहीं होगा, मेरे ख्याल से डेटा दिमाग में आपके 30 रुपीज वेरिएबल, 20 रुपीज फिक्स्ड, 50 रुपीज इज टोटल कॉस्ट। वो कितने मांग रहा है? 40 में। आपको लगेगा 40 में बेचने से नुकसान होगा, कुछ नहीं होगा। वो जो 20 रुपया फिक्स कॉस्ट है वो फिर से लगने वाली नहीं है, आपकी जो फिर से लगेगी वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लगेगी। कितनी? 30 रुपीज। तो 10 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन बचेगा ना आपको 40 रुपए में बेचने के बाद भी, तो इंक्रीमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन यानी इंक्रीमेंटल प्रॉफिट है 10 रुपीज। यू शुड एक्सेप्ट दी ऑफर। इस टाइप से सोचना है किसी भी क्वेश्चन में, नॉट ओनली प्राइसिंग डिसीजन, हर क्वेश्चन में इस एंगल से सोचना है। मेनी अ टाइम्स a question says that you should calculate a sales price in order to maintain the same profit as before, but the same profit could mean any of the following। एक बहुत पॉपुलर स्टाइल है इंस्टीट्यूट में पूछने के लिए। जैसे अभी आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, नए कस्टमर का ऑफर भी मिलने वाला है, लेकिन उनका कहना है नए कस्टमर को प्राइस कोट करते समय ध्यान रखो कि आपका एग्जिस्टिंग प्रॉफिट अफेक्ट न हो, यानी यू आर एबल टू मेंटेन द सेम प्रॉफिट। अब ये सेम प्रॉफिट 3 टाइप के हो सकते हैं और वहां पर इंटरप्रिटेशन करना जरूरी है। समटाइम्स दे से मेंटेन सेम ओवरऑल प्रॉफिट एज बिफोर, यानी अभी आप जितना प्रॉफिट कमा रहे टोटल उतना ही मेंटेन करो। ओवरऑल प्रॉफिट यानी टोटल प्रॉफिट। हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें अभी हम 60,000 यूनिट्स बेच रहे, तो आपको 60,000 यूनिट्स बेच के जो प्रॉफिट मिल रहा था टोटल, वही प्रॉफिट टोटल आपको नए कस्टमर का ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद भी मिलना चाहिए। नए कस्टमर का ऑर्डर 25,000 यूनिट्स का है, तो 60 + 25 85,000 यूनिट्स बेच के भी उतना ही टोटल प्रॉफिट चाहिए। ऐसा कभी कभी लिखा जाता है कि आपका ओवरऑल प्रॉफिट सेम होना चाहिए। कभी दिया जाता है सेम प्रॉफिट पर यूनिट एज बिफोर। इसको जरा केयरफुली पढ़ना, आप सोचेंगे दोनों का मतलब एक ही है। पहले जितना प्रॉफिट पर यूनिट हो रहा था उतना ही प्रॉफिट पर यूनिट बाद में भी होना। तो पर यूनिट लिखा रहा है तो मतलब अलग है, टोटल लिखा रहा है तो मतलब अलग है, राइट। आपने घर पे क्वेश्चन सॉल्व तो किए होंगे रिवीजन में, कल एग्जाम है तो ये सबके आंसर अलग अलग आते हैं। ओवरऑल प्रॉफिट मेंटेन करना अलग, पर यूनिट मेंटेन करना अलग, और कभी कभी सेम परसेंटेज प्रॉफिट एज बिफोर बोलते हैं। तीनों के आंसर अलग आते हैं। एंड व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन डोंट रश while reading the question कि same profit maintain करना है, but same which profit, whether same profit in percentage to be maintained, same profit per unit is to be maintained, or same overall is to be maintained. And the question is not clear कि वो per unit maintain करने को बोल रहे हैं क्या percentage या total, तो by default it is first one, that is overall and total. If question is not clear then you have to maintain same total profit। जैसे आपका total profit था 5 लाख प्रीवियस ईयर में, तो वही 5 लाख आपको नेक्स्ट ईयर में मेंटेन करना है। ये बाय डिफॉल्ट हुआ, लेकिन उन्होंने बोला कि सेम प्रॉफिट पर यूनिट मेंटेन करना है। और पिछले साल आप 10 रुपीज पर यूनिट कमा रहे थे, तो अगले साल भी 10 पर यूनिट होना, ओवरऑल कुछ भी हो सकता है। और पिछले साल आपका प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स प्राइस था, तो अगले साल भी 25% ऑन सेल्स होना विथ रिवाइज सेल्स एंड रिवाइज कॉस्ट फॉर नेक्स्ट ईयर, बट प्रॉफिट परसेंटेज शुड बी सेम। सो बी केयरफुल अबाउट रीडिंग दिस, right? So as I said, one should read the data carefully to avoid any mistake in the calculation. I have seen students committing mistake by not reading it carefully. और ये प्रॉफिट परसेंटेज पे तो और एक चीज पे ध्यान देना, वो प्रॉफिट परसेंटेज कभी परसेंटेज ऑफ कॉस्ट दिया जाता है और कभी परसेंटेज ऑफ सेल्स दिया जाता है। वो जल्दबाजी में पढ़ा तो वहां पर एक गलती तो और हो जाती है। सो बी केयरफुल वेदर इट इज परसेंटेज ऑफ कॉस्ट और परसेंटेज ऑफ सेल्स। You go to make or buy decision, that type of a question which are asked. It means whether we should manufacture or whether we should buy from outside. Right. This is the decision regarding making or buying a particular component. Let us imagine we are a vehicle manufacturer. We are a vehicle manufacturer. In vehicle there are lot many parts and components which are required. One of the part, एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, व्हीकल मैन्युफैक्चरर सभी लोग टायर खुद मैन्युफैक्चर करते क्या? एवरीबडी बाइज इट फ्रॉम आउटसाइड।
तो शायद ऐसा हो सकता है दैट मैन्युफैक्चरिंग टायर इज कॉस्टली फॉर देम। व्हीकल मैन्युफैक्चरर को टायर मैन्युफैक्चर करना कॉस्टली पड़ता होगा शायद, सो दे प्रेफर टू बाई इट फ्रॉम आउटसाइड। वो टाइप का डिसीजन है ये कि कोई पार्ट या कंपोनेंट जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग में लगता है, वो पार्ट या कंपोनेंट हमने खुद ने मैन्युफैक्चर करना चाहिए या बाहर से खरीदना चाहिए। दैट टाइप ऑफ सिचुएशन वी आर टॉकिंग अबाउट। ये मैंने इसलिए क्लैरिफाई किया, वी आर नॉट अ ट्रेडर, वी आर अ मैन्युफैक्चरर। यदि मैं इसको सिचुएशन को कन्वर्ट करके ट्रेडर की सिचुएशन में डाल दूं, तो ट्रेडर डजंट मैन्युफैक्चर एनीथिंग, ही बाइज एवरीथिंग एंड सेल्स एवरीथिंग। तो मैं बात कर रहा हूं मैन्युफैक्चरर की, जो कोई फिनिश प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन फिनिश प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में कोई एक आध पार्ट कंपोनेंट, ढेर सारे पार्ट कंपोनेंट लगते हैं, वो पार्ट कंपोनेंट भी मैं ही बनाऊं या बाहर से खरीदूं। व्हीकल मैन्युफैक्चरर वो आपके वाइपर्स बोलो, बल्ब्स बोलो, केबल्स बोलो, बहुत सारी चीजें बाहर से खरीदते हैं और कुछ चीजें खुद बनाते हैं। बेसिकली इंजन, चैसिस एंड सम क्रिटिकल कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स दे मैन्युफैक्चर ऑन देयर ओन। ये जनरली उनका स्टाइल है। तो उन्होंने कुछ सोच के डिसीजन लिया होगा कि ये बाहर से खरीदना ठीक है और ये खुद ने मैन्युफैक्चर करना ठीक है। वो डिसीजन है ये, मेक और बाय। और एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि कोई कंपोनेंट मैं बाहर से खरीदूं या मैन्युफैक्चर करूं। लॉजिकली it's a decision regarding, as I said, manufacture of a particular component or buying from outside. The decision depends upon the relevant cost of buying and relevant cost of manufacturing. Relevant cost, इसमें irrelevant cost छोड़ देना है। मैन्युफैक्चरिंग में रेलेवेंट खर्चा कितना है वो सोचना है, और परचेस करने में रेलेवेंट खर्चा कितना है वो सोचना है। दोनों को कंपेयर करना है। रेलेवेंट यानी आपका इंक्रीमेंटल। आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट ऑल्सो कि एक्स्ट्रा कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग की कितनी लगेगी और एक्स्ट्रा कॉस्ट बाइंग की कितनी लगेगी, डेटा में से देख लेना। और मेजॉरिटीली एक्स्ट्रा कॉस्ट विल बी योर वेरिएबल कॉस्ट, मेजॉरिटीली, अनलेस एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट इज गिवन, अदरवाइज जनरली इट इज द वेरिएबल कॉस्ट। उन दोनों को कंपेयर करने का और देखने का कौन सा सस्ता पड़ रहा है। विच एवर इज चीपर द डिसीजन गोज इन फेवर ऑफ दैट। Unavoidable fixed costs are generally irrelevant for decision making. Unavoidable fixed cost, जो आप मेकिंग का डिसीजन लो या बाइंग का लो, वो फिक्स कॉस्ट लगनी है। फॉर एग्जांपल पूरे फैक्ट्री का रेंट, अरे वो एक हाथ कंपोनेंट परचेस कर लेने से या मैन्युफैक्चर करने से फैक्ट्री के रेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज अनअवॉइडेबल। प्रोडक्शन मैनेजर की सैलरी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो फिक्स कॉस्ट वैसे भी अनअवॉइडेबल है, दैट इज इररेलेवेंट, उसको इग्नोर करना है व्हाइल टेकिंग द डिसीजन। अब ये रेलेवेंट और इररेलेवेंट फिक्स कॉस्ट देख लेते हैं। मैं सिर्फ फिक्स कॉस्ट की बात इसलिए कर रहा हूं बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट तो काम करेंगे तो ही लगती है, नहीं करेंगे तो नहीं लगती। इट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट आर ऑलवेज रेलेवेंट। वेरिएबल कॉस्ट आर ऑलवेज रेलेवेंट बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट कैन बी अवॉइडेड बाय नॉट मैन्युफैक्चरिंग। फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में सोचना पड़ता है कि गिवन फिक्स्ड कॉस्ट इन द क्वेश्चन वेदर इट इज रेलेवेंट और वेदर इट इज इररेलेवेंट। तो हम फिक्स्ड कॉस्ट के दो पार्ट करेंगे, एक रेलेवेंट फिक्स्ड कॉस्ट जो आपको डिसीजन मेकिंग में लेना है, और एक इररेलेवेंट फिक्स्ड कॉस्ट जो डिसीजन मेकिंग में से इग्नोर करना है। जनरली स्पेसिफिक फिक्स्ड कॉस्ट यानी फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड ओवरहेड्स हम बात कर चुके हैं डिवीजन ऑफ कॉस्ट में। कुछ याद आ रहा है? प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड्स, ओवरहेड्स के दो पार्ट किए थे, वेरिएबल और फिक्स्ड। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स बुलाओ या फिक्स्ड कॉस्ट बुलाओ, एक ही बात है। स्पेसिफिक ओवरहेड्स इनकर्ड इज ऑलवेज रेलेवेंट। स्पेसिफिक यानी स्पेसिफिक टू दैट डिसीजन। एग्जांपल, कोई एक कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे एक मशीन परचेस करनी पड़ेगी। यदि मैं वो मैन्युफैक्चर करूं तो वो मशीन परचेस करनी पड़ेगी, तो उस मशीन का डेप्रिसिएशन रेलेवेंट हुआ, क्योंकि मशीन तभी खरीदूंगा मैं जब वो कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करना हो, तो क्योंकि वो खर्चा स्पेसिफिकली उस कंपोनेंट के लिए हो रहा है। दो इट इज फिक्स्ड बट इट इज स्पेशली इनकर्ड फॉर दैट कंपोनेंट, तो ये क्या हुआ? रेलेवेंट। ये आपके कॉस्ट कैलकुलेशन में आएगा। जनरल ओवरहेड्स या एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स आर इररेलेवेंट। एक एग्जांपल के लिए, मेरे पास एक एग्जिस्टिंग मशीन है, वो मशीन पे मैं 3 कंपोनेंट ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, एबीसी, और एक डी मैन्युफैक्चर और करना चाहता हूं उसी मशीन पे। पहले उस मशीन का डिप्रिसिएशन में 3 कंपोनेंट में बांटता था, एबीसी में। अब उस मशीन का डिप्रिसिएशन 4 में बांटूंगा, यानी डी को भी थोड़ा सा शेयर दूंगा। डी को शेयर दूंगा, इसको बोलूंगा मैं एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स।
कॉमन खर्चे में से उसको कुछ शेयर दूंगा, तो डी को जो शेयर दूंगा ना मैं डेप्रिसिएशन का, वो वैसे इररिलेवेंट है, क्योंकि डी बनाने की वजह से नहीं लगा है वो खर्चा है, डी में बांटा जरूर गया है। कुछ दो में फर्क समझ रहे क्या आप? पहले कॉलम में मैंने बोला था मशीन खास उसके लिए परचेस की है स्पेसिफिकली, तो मशीन का पूरा डेप्रिसिएशन रेलेवेंट है, और कॉमन में से जो आपने बांटा, वो जो शेयर दिया वो इररिलेवेंट है। रेलेवेंट फिक्स कॉस्ट इज अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। जैसे आप वो कंपोनेंट नहीं बनाते तो मशीन नहीं खरीदते तो उसका डेप्रिसिएशन या मेंटेनेंस वो भी नहीं लगता। सो कॉस्ट विच इज अवॉइडेबल इज रेलेवेंट। रेलेवेंट कॉस्ट बोलना, अवॉइडेबल कॉस्ट बोलना एक ही है, और कॉस्ट विच इज अनअवॉइडेबल इज इररेलेवेंट। अनअवॉइडेबल कॉस्ट को हम इररेलेवेंट कॉस्ट बोलते हैं, अवॉइडेबल कॉस्ट को रेलेवेंट कॉस्ट बोलते हैं। वेरी सिंपल। और एक एग्जांपल, इंस्टीट्यूट की जो रजिस्ट्रेशन की फीस है सीए वाली फाइनल की, वो तो आपको देना ही है, चाहे आप कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करो या मत करो, इंस्टीट्यूट की फीस तो कंपलसरी है, तो वो क्या हो गई अनअवॉइडेबल। लेकिन आप एक ट्यूशन क्लासेस या कोचिंग क्लासेस की जो फीस भरते वो कंपलसरी थी, वो नहीं थी, दैट वाज इन योर हैंड। मीन्स इफ यू विश यू कुड हैव अवॉइडेड, इफ यू विश यू कैन इनकर, तो दैट डिसीजन इज इन योर हैंड। तो जो आपके हाथ में डिसीजन है उसी को डिस्क्रिशनरी कॉस्ट भी बोलते हैं। द कॉस्ट विच इज एट योर डिस्क्रिशन विच इज अवॉइडेबल दैट इज रेलेवेंट फॉर द डिसीजन, एंड द कॉस्ट विच इज अनअवॉइडेबल वो लगने ही वाली थी वैसे भी, दैट इज इररेलेवेंट। राइट, रेलेवेंट यानी इंक्रीमेंटल, वो एडिशनल खर्चा लगा आपको, और इररेलेवेंट यानी विच इज नॉट एन इंक्रीमेंटल, वो एग्जिस्टिंग खर्चा उतना ही था, उसमें एक्स्ट्रा नहीं लगा आपको। ये जो एग्जांपल दिया था मैंने आपको, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन परचेज स्पेशली फॉर मैन्युफैक्चर, तो वो क्या हो गई रेलेवेंट, स्पेशली परचेज्ड। और कुछ प्रोपोर्शनेट रेंट चार्ज टू द प्रोडक्ट, फैक्ट्री के टोटल रेंट में से कुछ प्रोपोर्शनेट चार्ज किया आपने उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में, वो दैट इज इररेलेवेंट। एक एग्जांपल और कोट करता हूं, तो दिमाग में रखना वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में, क्योंकि सभी में लगेगा। आपके मार्जिनल कॉस्टिंग के डिसीजन मेकिंग के हर क्वेश्चन में रेलेवेंट इररेलेवेंट लगने वाला है, ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन। एन इंस्टीट्यूट इज फॉन्ड ऑफ गिविंग यू इररेलेवेंट डेटा मोर, जानबूझ करके इररेलेवेंट डेटा डाल देते उसमें, क्योंकि आपका स्किल देखना चाहते हैं वेदर यू कैन आइडेंटिफाई द रेलेवेंट डेटा फ्रॉम इररेलेवेंट डेटा। एक एग्जांपल के लिए लेते, देयर आर 3 फ्रेंड्स ए बी एंड सी। उसमें से पहले फ्रेंड ए हैज कम फ्रॉम आउट स्टेशन टू पुणे, राइट, टू टेक द कोचिंग ऑफ सीए फाइनल। ही हायर्ड अ रूम for his accommodation at a rent of rupees 6,000 per month, right? This is the example which I popularly quote. He has hired a room at the rent of rupees 6,000 per month and he started attending the batch of CA final costing. 2 दिन बाद उसका एक दूसरा दोस्त उसी के गांव से आया बी, उसने भी ज्वाइन कर लिया। उसने ए को रिक्वेस्ट किया कि यार तेरे रूम में अकोमोडेट हो जाता हूँ, रेंट शेयर कर लेंगे और पढ़ाई भी साथ में कर लेंगे। ए ने बोला कोई बात नहीं, आ जा, रेंट 6,000 है, आधा आधा 3,000। बोले ठीक है, नो प्रॉब्लम, वो भी ज्वाइन हो गया। 2 दिन बाद एक दोस्त को और भनक पड़ गई उनके गांव में कि ये 2 लोग तो सीए बनने गए, मेरे को छोड़ गए करके, तो सी भी आ गया, राइट, उसने भी बैच ज्वाइन कर लिया। उसने भी 2 दोस्तों को बोला यार हमको भी अकोमोडेट कर लो यार, एक जन को और। वो बोले यार जगह नहीं है, बहुत छोटा सा रूम है यार। बोले प्लीज, राइट, आपका ही दोस्त हो, राइट, कर लो अकोमोडेट। तो सी को भी अकोमोडेट करने का सोचा। बी ने सी को समझाया, देख भैया इसका रेंट है 6,000, तेरे को आना हो तो तेरा 1/3 शेयर कितना 2,000 रुपीज तेरे को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो तू आ जा। सी ने बोला नहीं यार, वो अभी ट्यूशन फीस भरी, बहुत सारे पैसे लेते हैं लोग, राइट, पैसे ज्यादा है नहीं, थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, एक काम करना यार 1,500 में एडजस्ट कर देना। ये सी ने किसको रिक्वेस्ट किया, बी को। बी ने इमीडिएटली एक सेंटेंस बोल दिया, ऐसे कैसे, 2,000 तेरा शेयर है, 1,500 में तेरे को अकोमोडेट करेंगे तो 500 रुपीज का लॉस होगा, हमको देना हो तो 2,000 ही तो भर जाए ऐसे। अब सी का चेहरा इतना सा हो गया बेचारा, उसके पास पैसे नहीं थे। अंदर ए होमवर्क कर रहा था सॉल्व, उसने सुन लिया, वो बाहर आया रूम में से, उसने बी को रोका, अरे रुक जा जरा, उसको जाने मत दे सी को। बोले क्यों, अरे कुछ लॉस नहीं होगा। अरे बोले कैसे नहीं होगा, 500 रुपए का लॉस होगा।
अरे बोले तू 2 दिन लेट आया था, जब तक वो रेलेवेंट इररेलेवेंट कॉस्टिंग कंसेप्ट हो गया था क्लास में, तेरे को पता नहीं है। अरे रुक जा। अरे बोले 500 लॉस होगा, उसको बोला 2000 रुपये दे दे, मान नहीं रहा। बोले रुक, समझ मेरी बात, सी नहीं भी आया तो भी हम दोनों को रेंट कितना देना है, 6000, और सी के आने के बाद भी टोटल रेंट तो 6000 ही है ना। तो सी का जो शेयर आ रहा है 2000, ये उसका कॉमन खर्चे में से शेयर है। इसी को हम बोलते हैं अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स या प्रोपोर्शनेट ओवरहेड्स या ओवरहेड्स अप्लाइड, ओवरहेड्स चार्ज कॉस्टिंग की लैंग्वेज में। तो सी का शेयर जरूर 2000 है, उसमें कोई गलती नहीं है, वो अकाउंटिंग के लिए। लेकिन सी का शेयर 2000, इसका ये मतलब नहीं होता है कि सी के आने से 2000 खर्चा लगा है। बस इसी बात पे फर्क कर रहा है। अकाउंटिंग के एंगल से सी का शेयर 2000 है, 1/3, ये बराबर है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि सी के आने की वजह से 2000 खर्चा लगा। सी आया क्या और नहीं आया क्या, खर्चा तो आपको 6000 टोटल लगना ही था। तो ए ने बी को समझाया, देख इसके आने से इंक्रीमेंटल रेंट कुछ भी नहीं लग रहा है, लेकिन ये 1500 जो दे रहा है वो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है। इससे हम दोनों का जो बर्डन है ना रेंट का, वो कम हो जाएगा। वो लॉस करके मत देख, वो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट है, आने दे। सी ने थैंक यू बोला ए को। बोले 2 चीज के लिए थैंक यू, एक तो तूने कंसेप्ट भी समझा दी जो मेरी मिस हो गई थी, और मुझे अकोमोडेट भी कर लिया। तो सी एडजस्ट हो गया। अब बैच खत्म हुई, शाम को खाना खाने के लिए गए ये लोग। तो ए और बी बोले हमने मेस ज्वाइन की है, चलता क्या तू? बोले चलूंगा ना यार, खाना तो लगेगा। तो सी को साथ में लेके जा रहे थे। ए और बी ने उसको समझा दिया, भैया मेस का चार्ज 3000 रुपीज पर मंथ है, वो तेरे को देना पड़ेगा, चल साथ में। अब सी को डिस्काउंट की आदत लग गई थी। सी ने बोला यार ये भी 2000 रुपए में एडजस्ट कर दो ना। अब ए और बी दोनों ने एक साथ नहीं बोल दिया। अरे बोले यहाँ एडजस्टमेंट नहीं होगा। ए ने भी मना कर दिया। सी ने ए को बोला यार सुबह तो तूने बड़ा कोऑपरेशन किया, अभी मना क्यों कर दिया? तो ए ने उसको क्या बोला, ये खर्चा स्पेसिफिकली तेरे लिए लग रहा है, ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। तू नहीं आया तो 3000 नहीं लगेगा, तू आया तो 3000 लगेगा। सो दिस एंटायर कॉस्ट यू हैव टू बेयर। रेंट की बात अलग थी। दो इट इज अ स्टोरी बट इट हैज गॉट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन सॉल्व करते समय बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना कि वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है क्या। सी के आने से 3000 खर्चा लग रहा है तो वो रेलेवेंट है, लेकिन वो जो 2000 रेंट था वो सी के आने से नहीं लग रहा था, वो इररेलेवेंट है डिसीजन मेकिंग में। वो कॉस्ट कैलकुलेशन में लेना नहीं, डिसीजन मेकिंग में। लेट्स गो अहेड। कभी कभी मेक और बाय डिसीजन में नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पूछ लेते हैं, यानी थ्योरी क्वेश्चन उसी में मेक और बाय डिसीजन में। एग्जाम्पल के लिए आपने एक कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करना या बाय करना, इसका कंपैरिजन किया। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई 30 रुपीज पर यूनिट और बाइंग कॉस्ट आ गई आपकी 26 रुपीज पर यूनिट। रेलेवेंट कॉस्ट की बात कर रहा हूं, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ बाइंग। अभी आप मैन्युफैक्चर कर रहे थे लेकिन 30 पर यूनिट इंक्रीमेंटल कॉस्ट थी या रेलेवेंट कॉस्ट थी, बाइंग में 26 लग रही है। तो नेचुरली कौन सा अल्टरनेटिव बेटर है? बाइंग। बाइंग इज चीपर। तो आपने डिसीजन ले लिया इन फेवर ऑफ बाइंग, दैट कंपोनेंट शुड बी परचेस्ड। ये आपका फाइनेंशियल डिसीजन है। अब क्वेश्चन में पूछा था कभी कभी व्हाट आर द अदर नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स व्हिच कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन इन रियल लाइफ। पहली बात तो एक क्वेश्चन पूछा, इस पे ध्यान देना। एक इंपॉर्टेंट बात इस पे ध्यान में, वो मैं बता देता हूं। प्लीज आंसर द क्वेश्चन कंप्लीटली। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है उतना तो कर देते, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे रहते हैं जैसे नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, कमेंट्स, क्रिटिसाइज, कंपेयर वगैरह, उसको इग्नोर करते। तो मार्क्स तो सभी के रिजर्व्ड है। तो आपको यदि बोला उन्होंने कि व्हाट आर द नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स व्हिच कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन, तो उसकी भी 4-5 लाइन लिखना है। ऐसे नहीं लिखना है, 4-5 लाइन लिखना है, क्योंकि उसके भी 1 या 2 मार्क है, मैक्सिमम 2 मार्क्स, मिनिमम 1 मार्क। तो डिस्कस कर लेते हैं। क्वालिटी ऑफ सप्लाईज बाय आउटसाइडर, आपने तो सस्ता देखा करके हाँ बोल दिया, 30 रुपीज की जगह 26। क्वालिटी समझो, उसके कंपोनेंट की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जो हम मैन्युफैक्चर करते थे, और वो कंपोनेंट आपके फिनिश प्रोडक्ट में फिट होगा और आपका फिनिश प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाएगा और कस्टमर की कंप्लेन आएगी, तो गुडविल तो आपका खराब हुआ। कस्टमर के आपके सप्लायर को थोड़ी कंप्लेन करने वाला है, तो आपको कंप्लेन करेगा। तो क्वालिटी भी चेक करो, नॉट ओनली द प्राइस। द डिसीजन वी टेक जनरली ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। रेगुलरिटी चेक करो कि सप्लायर रेगुलर है क्या। जैसे हम टायर खरीदते हैं टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, और हम टाटा मोटर्स है ट्रक बनाते हैं, वो थोड़ा सप्लायर इरेगुलर है, वो टायर समय पे नहीं देता, तो आपके ट्रक मैन्युफैक्चर होकर रेडी है विदाउट टायर,
तो आप कस्टमर को क्या बोलेंगे, अभी ले जाओ ट्रक, बाद में टायर भिजवा देते हैं। So you have missed your delivery dates, your goodwill is at a stake just because one of your supplier is irregular. ये भी तो चेक करो, सिर्फ प्राइस थोड़ी चेक करना है। या आप दूसरे लोगों से पूछ सकते हैं, सप्लायर की रेपुटेशन, खुद का एक्सपीरियंस देख सकते हैं कि वेदर ही इज रेगुलर और नॉट, उसकी इंटीग्रिटी और रिलायबिलिटी, राइट। समझो आपके कॉम्पिटिटर ने आप व्हीकल मैन्युफैक्चरर, आपके दूसरे कॉम्पिटिटर ने वो सप्लायर को बोला कि हम थोड़ा सा पैसा ज्यादा देंगे, इनको सप्लाई बंद कर दे। नहीं कर सकते ऐसा, कंपटीशन है, कुछ भी हो सकता है। तो उसकी इंटीग्रिटी, उसकी रिलायबिलिटी, वो भी चेक करना जरूरी है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है, ऑल दीज आर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, नॉन फाइनेंशियल। बिहेवियर ऑफ सप्लायर ड्यूरिंग शॉर्टेजेस, बुरे वक्त साथ देता क्या, देखो, राइट। समझो रबर का शॉर्टेज चल रहा है, विच इज एन इनपुट फॉर मैन्युफैक्चरिंग टायर, उस समय वो बराबर सप्लाई करेगा क्या हमको, राइट। उस समय उसकी, बोलते हैं ना, सही दोस्त की पहचान तभी होती है जब वक्त बुरा होता है, वैसे सही सप्लायर की पहचान तभी होगी। डिपेंडेंस ऑन आउटसाइड एजेंसी, ये एक मेंटल ब्लॉकेज रहता है हर मैनेजमेंट का। इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग अ कंपोनेंट, यू आर इंडिपेंडेंट। द मोमेंट यू स्टार्ट बाइंग फ्रॉम आउटसाइड, यू आर डिपेंडेंट। तो पहली बात तो आपको ये पसंद है क्या, वेदर यू वुड लाइक टू डिपेंड ऑन समवन एल्स, क्योंकि आउटसोर्सिंग करना ये भी कला है। यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर टू डिपेंड ऑन समवन एल्स। आप सीए के ऑफिस में ही देखेंगे, generally large firms, big firms, they depend on article clerks. They have got a number of article clerks, so they have learned delegation. और वही small firms देखेंगे, small इसीलिए रहेगी because they cannot delegate. वो ब्लॉकेज रहता है, मेंटल ब्लॉकेज, दैट आई डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन देम। ये लोग टाइम पर बराबर छुट्टी मारते, राइट। टैक्स ऑडिट के सीजन में इनकी नवंबर एग्जाम की छुट्टी रहती है और बैंक ऑडिट के सीजन में इनकी मई एग्जाम की छुट्टी रहती है, और बीच बीच में क्लास के लिए जाते रहते हैं। तो let us not be dependent on them, let us do the work on your own, but then you can do the limited work. Anyway, वो एग्जाम्पल इसलिए दे रहा था कि ये हर मैनेजमेंट का मेंटल ब्लॉकेज हो सकता है, या उनकी क्या एबिलिटी है, वेदर मैनेजमेंट इज रेडी फॉर आउटसोर्सिंग और नॉट, उस पर डिपेंड करता है। सो यू शुड बी मेंटली रेडी और प्रिपेयर टू आउटसोर्स एंड डिपेंड ऑन आउटसाइड एजेंसीज। एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स, another area of marginal costing where you can use it for decision making. Exploring new markets, it means you are trying to search or find new markets for your product. This type of question or this type of situation comes only when you have got some surplus capacity with you. So let us discuss that. When your present market is saturated, then only one has to explore the new markets. Now what do we mean by this? Present market is saturated means whichever market you are selling at present, in that market you cannot sell more. In that market you cannot sell more. For example, you are at present selling only in Maharashtra. And whatever you could sell in Maharashtra, you have already tapped that market. So you are unable to sell more in Maharashtra. So we'll say that our market is saturated. Present market is saturated. There is no scope for further sale. So you'll have to explore other states other than Maharashtra. Or at present you are operating only in India. You are selling in India. And in India you cannot sell more. It means Indian market is saturated. So you will look abroad. You will try to export. That is the situation we are talking about, exploring the new markets. So present market is saturated. You have capacity to produce more, but you cannot sell in the present market. So you'll have to think about or explore the new markets. If the firm is left with balanced capacity, then the incremental cost shall be variable cost, which should be compared with the incremental revenue to take the decision regarding entering into the new market. सब जगह मेन लॉजिक वही रहेगा, आपको नए मार्केट में एंट्री लेना है, उस मार्केट में एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स रहेंगे, सो यू हैव टू कोट द प्राइस एज लो एज पॉसिबल. जनरली प्राइस कम रखनी पड़ेगी, लेकिन प्रॉफिट भी होना चाहिए बिजनेस करते समय. तो व्हाइल एंटरिंग इनटू द न्यू मार्केट, व्हाट यू विल थिंक ऑफ? इंक्रीमेंटल अप्रोच. एडिशनल यूनिट्स विच यू विल मैन्युफैक्चर यूजिंग योर स्पेयर कैपेसिटी. ध्यान रहे, इसमें दो चीजें होना जरूरी है. एक, आपके पास बैलेंस कैपेसिटी बची है, यानी यू कैन प्रोड्यूस मोर बट यू कैन नॉट सेल मोर. ऐसी सिचुएशन है, यू कैन प्रोड्यूस मोर बट यू कैन नॉट सेल मोर. तो सेल करने के लिए आप नए मार्केट में जा रहे हैं,
एंड यू विल मेक यूज ऑफ दैट सरप्लस कैपेसिटी। जैसे पिछले एग्जांपल में लिया था कि 1 लाख यूनिट्स की हमारे पास कैपेसिटी है, एट प्रेजेंट वी आर मैन्युफैक्चरिंग ओनली 60,000, तो आपके पास सरप्लस कैपेसिटी है 40,000, लेकिन वो प्रेजेंट मार्केट में नहीं बेच सकते, तो किसी दूसरे मार्केट में बेचना है। ये 40,000 यूनिट्स और मैन्युफैक्चर कर भी लिए तो फिक्स कॉस्ट फिर से लगेगी क्या? नहीं। तो कौन सी लगेगी? वेरिएबल कॉस्ट, वो आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट हुई। अच्छा, हो सकता है नए मार्केट में एंट्री लेने के लिए कुछ एडवर्टीजमेंट करना पड़े, तो वो भी इंक्रीमेंटल कॉस्ट। कुछ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगे, तो वो सब इंक्रीमेंटल कॉस्ट आपने लेना है, और उसको इंक्रीमेंटल रेवेन्यू से कंपेयर करना है जो न्यू मार्केट से मिलेगा या एक्सपोर्ट मार्केट से मिलेगा। डिफरेंस आएगा आइदर इंक्रीमेंटल प्रॉफिट और इंक्रीमेंटल लॉस। इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आया तो यस, एक्सेप्ट द ऑफर और एंटर द न्यू मार्केट। इंक्रीमेंटल लॉस आया तो नो। एनी स्पेशल कॉस्ट और बेनिफिट शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड इन डिसीजन मेकिंग, but existing fixed cost should be ignored, especially in case of export। यदि वो एक्सपोर्ट का ऑफर है तो एक्सपोर्ट के कुछ इंसेंटिव्स या बेनिफिट्स देती है गवर्नमेंट, तो वो आपने कंसिडर करना है। यानी आपका सेल्स रेवेन्यू एड सम एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। कुछ याद आ रहे हो तो एक्सपोर्ट करने से गवर्नमेंट हमको इंपोर्ट करने का लाइसेंस भी देती है। वो लाइसेंस को आप यूज कर सकते किसी कंपोनेंट को इंपोर्ट करने के लिए, उसमें कुछ प्रॉफिट कमा सकते, तो वो एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ। आपको लाइसेंस नहीं चाहिए तो वो किसी दूसरे आदमी को बेच के उस लाइसेंस को भी पैसे में कन्वर्ट कर सकते। दैट इज वन ऑफ द बेनिफिट। एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूं। एक्सपोर्ट में आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल सकता है, यानी आपकी जो इनपुट्स पे जो ड्यूटीज और टैक्सेस लगे हैं टू मैन्युफैक्चर फिनिश गुड्स, और वो फिनिश गुड्स बाद में आपने की है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का प्रूफ देने के बाद गवर्नमेंट आपको इनपुट की ड्यूटी रिफंड कर देती है, तो पैसे आपके वापिस आ गए, ड्यूटी ड्रॉबैक। कुछ कैश सब्सिडी दे देती है गवर्नमेंट, ये क्वेश्चन में दिए रहे तो हाँ, क्वेश्चन में जो बेनिफिट दिए रहे वो आपने कंसिडर करना है। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं खुद होके। सो वॉट एवर एडिशनल कॉस्ट एंड एडिशनल बेनिफिट्स आर गिवन टू यू, all of them should be considered while taking the decision. And finally the decision goes relevant revenue, incremental revenue and incremental cost, and that is how you take the decision on the basis of incremental profit or loss, ignoring the existing fixed cost. Key factor question, which are very popular questions from the exam point of view. Key factor, it is any manufacturing resource which is in short supply. जो भी रिसोर्स शॉर्टेज में है, any resource which is in short supply is known as key factor. For example, limited availability of raw material या limited availability of machine hours, skilled labor. Generally 5 टाइप के रिसोर्सेज हमको लगते हैं प्रोडक्शन में, उसको 5M बोलते हैं हम। They all start with the word or letter M. Manpower यानी लेबर, मशीनरी, मटीरियल, ये 3 M तो प्रेडोमिनेंट है। मैनपावर यानी लेबर, मशीनरी यानी मशीन टाइम और मटेरियल। 2 M और लगते, राइट। मार्केट तो वहां जहां बेचते हैं, लेकिन ठीक है मार्केट ले लेते, वो आपको डिमांड दी जाएगी क्वेश्चन में कि मार्केट में आप कितने यूनिट्स बेच सकते, तो उससे ज्यादा प्रोड्यूस करना ही मत जिससे जो आप बेच नहीं सकते वो। और एक मैनेजमेंट का टाइम। Management is one which makes everything work, right? To extract the output from all the resources you need strong management. यानी उसमें से 3 रिसोर्स ज्यादा काम के आपके, मटेरियल, मैनपावर और मशीनरी। इसमें तीनों में से कोई भी एक की फैक्टर हो सकता है, यानी लिमिटेड हो सकता है। These limited resources are known as limiting factors, governing factors, etc. because they limit your production and sales activity, and thus they put a limit on your profitability. जैसे सीए स्टूडेंट्स के लिए सबसे लिमिटेड रिसोर्स टाइम, राइट। यदि ये टाइम अनलिमिटेड रहता तो आप सीए के साथ और न जाने कितने सारे कोर्सेज कर लेते थे, राइट। तो टाइम पुट्स अ लिमिटेशन ऑन योर एक्टिविटी, वैसे ही दिस रिसोर्सेज पुट्स अ लिमिटेशन ऑन योर प्रोडक्शन एंड सेल्स, एंड इनडायरेक्टली दे पुट अ लिमिटेशन ऑन योर प्रॉफिट। आवर ऑब्जेक्टिव शैल बी टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट विद अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेज। की फैक्टर रिसोर्सेज को यूज करके प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। मेरे ख्याल से रिकॉल तो सब हो रहा है, सब किया हुआ है आपने, उस सिचुएशन को रिकॉल करते जाना है। यू हैव टू एंटर इनटू डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। स्टेप्स फॉर सॉल्विंग की फैक्टर क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, की फैक्टर के क्वेश्चन में मल्टीपल प्रोडक्ट्स तो दिए ही जाएंगे आपको, मल्टीपल प्रोडक्ट्स। सपोज यू आर मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट ए, बी, सी एंड डी। मल्टीपल प्रोडक्ट्स क्यों देते हैं? यदि आप एक ही प्रोडक्ट बनाने वाले होंगे तो आपको डिसीजन क्या लेना है, पूरे रिसोर्सेज उसी के लिए लगा दो ना। जिससे लाइफ में सिर्फ सीए ही करना है और कुछ करना ही नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम का है टाइम अलॉटमेंट का, पूरा टाइम उसी के लिए लगा दो, लेकिन काम तो बहुत सारे करना है लाइफ में,
और टाइम लिमिटेड है, तो फिर उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, उसको बांटना पड़ता है। बस वही सिचुएशन वहां भी है। तो 4 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब आपको सोचना है 4 में से पहले किसको मैन्युफैक्चर करूं, पहला प्रेफरेंस ए को दूं या बी को दूं या सी को दूं या डी को दूं, और चारों को तो नहीं फुलफिल कर पाऊंगा क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। आई विल नॉट बी एबल टू फुलफिल द डिमांड फॉर ऑल द 4, दैट इज फॉर श्योर। यदि चारों की डिमांड फुलफिल होने के बाद, मार्केट डिमांड फुलफिल होने के बाद टाइम या रिसोर्स बच गया, तो फिर की फैक्टर ही नहीं हुआ ना। वो तो की फैक्टर तो तभी है व्हेन इट इज लिमिटेड। तो लिमिटेड है, चारों की डिमांड सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा, किसी की कर पाऊंगा, किसी की नहीं। अब आपको सोचना है कि कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करूं लिमिटेड रिसोर्स में और कौन सा छोड़ दूं। बट यू हैव टू थिंक इन अ मैनर दैट योर ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज मैक्सिमम। तो उसको सॉल्व करने की स्टेप्स, पहले तो वो की फैक्टर क्या है वो आइडेंटिफाई करो। वो क्वेश्चन केयरफुल पढ़ते समय ही आइडेंटिफाई हो जाएगा। कुड बी मटेरियल, कुड बी मैन पावर, कुड बी मशीनरी जनरली। देन यू हैव टू प्रिपेयर अ कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। तो 4 प्रोडक्ट जो है ABCD, वो चारों की कंट्रीब्यूशन की स्टेटमेंट बनाओ। सेल्स माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट, यू विल गेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। The important point is the decision should not be taken on the basis of contribution per unit, but it should be taken on the basis of contribution per key factor. All of you are aware. एग्जाम्पल के लिए A और B 2 प्रोडक्ट है। A का कंट्रीब्यूशन 10 रुपीज पर यूनिट है और B का कंट्रीब्यूशन 15 रुपीज पर यूनिट है। तो दिखाई देगा कि B ज्यादा कमा के दे रहा है एज कम्पेयर टू A। और लेकिन A बनाने में 1 आवर लगता है सिर्फ, और B बनाने में 3 आवर्स लगते हैं। और आवर्स, मशीन आवर्स इज योर की फैक्टर। और तो भैया यहाँ 10 रुपया पर यूनिट है, लेकिन 1 घंटे में 10 रुपया मिल रहा है। इधर 15 रुपए दिखने के लिए, लेकिन आफ्टर स्पेंडिंग 3 आवर्स ऑफ मशीन, तो पर आवर तो कंट्रीब्यूशन सिर्फ 5 रुपीज हुआ ना। तो प्रायोरिटी इसको नहीं, इसको दी जाएगी। एनीवे, एक स्टेटमेंट भी देखेंगे हम इमेजिनरी। ये कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर के बेसिस पे आप रैंकिंग या प्रायोरिटी असाइन करेंगे। हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर को फर्स्ट रैंक, देन सेकंड, देन थर्ड एंड फोर्थ। And then you will allocate the resources, limited resources based on such ranking. वो ranking के हिसाब से resources allot करते हुए जाना है, और जहां resource खत्म हो जाएंगे वहां रुक जाना है। इसका जो आंसर निकलेगा, जो आंसर आएगा, that resultant answer is also known as optimum product mix। तो क्वेश्चन की फैक्टर का हो या ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स का, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि फाइनल आंसर विच यू गेट फ्रॉम की फैक्टर क्वेश्चन इज द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। एक इमेजिनरी डेटा लेके थोड़ा ट्राई करते हैं हाउ वी प्रेजेंट द आंसर ऑफ की फैक्टर, रिकॉल करने के लिए। आई एम अज्यूमिंग 3 प्रोडक्ट्स A, B and C, only 3। जस्ट पे अटेंशन, रिकॉल करना है सिर्फ, कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको दी है क्वेश्चन में, ऐसा समझो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी आपको क्वेश्चन में दी हुई है, नहीं दी रहे तो ग्रुपिंग कर लेना, प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड जमा कर लेना। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया आपका सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट से 20 रुपीज, 10 रुपीज और 50 रुपीज, राइट। और मैंने आपको जो बताया इंपॉर्टेंट पॉइंट सभी को पता है, फिर भी जल्दबाजी में, एग्जाम की जल्दबाजी में यहां से रैंकिंग लगा देते हैं। C फर्स्ट रैंक, A सेकंड रैंक और B थर्ड रैंक, ये कभी मत करना। मटेरियल रिक्वायर्ड केजीज पर यूनिट, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि क्वेश्चन में मटेरियल वाज की फैक्टर। A बनाने के लिए आपको 1 kg लगता है सिर्फ, फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ B यू रिक्वायर 2 kgs एंड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ C you require 5 kgs of raw material for each unit of output. From here you will get contribution per kg of raw material that is point C divided by D. This 20 rupees can be earned in 1 kg of raw material. So the contribution per kg is 20. To earn this 10 rupees you need 2 kg. So per kg you are earning only 5 rupees. And here to earn 50 rupees you have to spend 5 kg. So per kg is only 10. यहाँ से ranking decide होगा. So priority or ranking is first rank goes to A, second rank goes to C, third rank goes to B. ये अपने ranking लगा देना है. फिर ranking के हिसाब से क्या करना है? Resources allot करना है. So we'll allot the resources. ये की रिसोर्सेज को अलॉट करना यानी कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। पर्टिकुलर्स एंड आई एम टेकिंग 4 कॉलम्स, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है की फैक्टर के क्वेश्चन का। नंबर ऑफ यूनिट्स विच यू वांट टू मैन्युफैक्चर, मटेरियल पर यूनिट इन केजी, एक यूनिट मैन्युफैक्चर करने में कितना मटेरियल लगेगा, टोटल मटेरियल कितना कंज्यूम हो जाएगा और बैलेंस कितना बच जाएगा। लेट्स सी, टोटल अवेलेबल रॉ मटेरियल्स, समझो ये आपको क्वेश्चन में दिया है टोटल अवेलेबल रॉ मटेरियल विच इज 50,000, ऐसा अज्यूम करो। पहला रैंक था हमारा ए का, तो ए की हम जितनी मैक्सिमम मार्केट में डिमांड है वो पहले सेटिस्फाई करेंगे।
मार्केट डिमांड विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। तो पहले उसकी मार्केट डिमांड सेटिस्फाई कर दो। समझो उसकी डिमांड थी 15,000 यूनिट्स, सेटिस्फाई दैट डिमांड। A required 1 kg per unit. So 15,000 units बनाने के लिए you will consume 15,000 kg out of 50,000. So balance resource left is 35,000. Balance बचा है तो you can think of second rank. Second rank था हमारा C का। C की market demand question में रहेगी, वहां से ले लेने की। I am trying to satisfy maximum demand of C also, which is only 5,000 units. It required 5 kgs per unit. 5,000 into 5, 25,000 kg इसने consume कर लिया out of 35. बैलेंस स्टिल लेफ्ट इज 10,000। अब हो सकता है वो जो थर्ड रैंक वाला प्रोडक्ट है, कौन सा, बी, उसकी पूरी डिमांड सेटिस्फाई नहीं हो सकती, तभी तो की फैक्टर है ना। तो आपने उल्टा चलना है, 10,000 kg में जितनी डिमांड सेटिस्फाई कर सकते हो उतनी कर देना है। सो बैलेंस मटेरियल विल यूज फॉर बी, तो 10,000 kg यूज करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 kg वॉज रिक्वायर्ड फॉर ईच यूनिट, सो 10,000 डिवाइड बाय 2 दिस 5,000। और ये जो कॉलम है आपका नंबर ऑफ यूनिट्स वाला, इसी कॉलम का नाम है प्रोडक्ट मिक्स, यानी किस प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करना, इटसेल्फ इज नोन एज प्रोडक्ट मिक्स। और ये जो आपका प्लान बना है, ए के 15,000, सी के 5,000 और बी के 5,000, दिस नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड ऑफ ईच प्रोडक्ट इटसेल्फ इज नोन एज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। समटाइम्स दे आस्क यू टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट पूछा रहे तो बहुत सिंपल सा काम है, आपने नंबर ऑफ यूनिट्स का डिसीजन तो ले लिया है, और एक पहले स्टेटमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आपके पास था, कुछ नहीं, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करना, लेकिन उसमें कंट्रीब्यूशन दो निकाले थे आपने, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी और कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल भी। तो पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल मत लेना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई करके टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ए के नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बी के नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सी के टोटल कंट्रीब्यूशन। और अब क्वेश्चन में जो फिक्स कॉस्ट दी है वो यहां से माइनस करना। समझो फिक्स कॉस्ट है 2 लाख, तो आपका ऑप्टिमम या मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया 4 लाख। ध्यान रहे, इस फिक्स कॉस्ट को हमने सिर्फ यहाँ प्रॉफिट निकालते समय यूज किया, डिसीजन मेकिंग में यूज नहीं किया, क्योंकि आप डिसीजन कुछ भी लेते तो फिक्स कॉस्ट तो लगनी थी। ये सिर्फ प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला है तो माइनस करना है, बाकी उसका कोई काम नहीं है। अनदर इंपॉर्टेंट एरिया आपका एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग का डिफरेंस। Let us see the difference between absorption and marginal. The main difference is this. Difference is only in the treatment of fixed cost. Please remember, as far as variable cost is concerned, there is no difference in the accounting treatment under absorption costing or under marginal costing. The difference is only in the accounting treatment of fixed cost. इसी में सिर्फ डिफरेंस है। एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट इज ट्रीटेड एज प्रोडक्ट कॉस्ट, वेयर एज अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट इज ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट। पहले इसी पॉइंट को समझ लेते हैं, क्योंकि इसी पॉइंट की वजह से बाकी डिफरेंसेस आए हैं। डिफरेंस ये ही है, डिफरेंस इन एब्सॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग इज ओनली दिस वन, फर्स्ट पॉइंट। रिमेनिंग पॉइंट्स आर एक्चुअली द कॉन्सिक्वेंसेस विच अराइज ड्यू टू दिस डिफरेंस। They are all consequences arising out of this difference. एक एग्जाम्पल लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर इज लेट अस से 40 रुपीज। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज 40 रुपीज। 40 रुपीज इज ऑलवेज अ प्रोडक्ट कॉस्ट, दोनों के लिए, मार्जिनल के लिए भी और एब्सॉर्प्शन के लिए भी। वो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट में दोनों जगह ट्रीटमेंट सेम है। माई एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट इज 1 लाख। My annual fixed cost is 1 lakh and I have produced 10,000 units in a year. So 1 lakh divided by 10,000. Per unit fixed cost is 10. अब ये एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग का कहना है कि एक यूनिट बनाने की वजह से 10 रुपीज फिक्स कॉस्ट भी लगती है। ऐसा किसका कहना है? एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग का। तो एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग ने क्या किया, वो जो फिक्स कॉस्ट थी 1 लाख उसको नंबर ऑफ यूनिट्स पे स्प्रेड किया और हर प्रोडक्ट को 10 रुपीज चार्ज किया। उसी को हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट इज ट्रीटेड एज प्रोडक्ट कॉस्ट। तो एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आ गई, 40 वेरिएबल प्लस 10 फिक्स्ड, यानी 50 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट है अंडर एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक। मार्जिनल कॉस्टिंग वाले को पूछेंगे तो बोलेगा किस बेवकूफ ने बोल दिया है कि ये फिक्स कॉस्ट इसके लिए लगी, प्रोडक्शन के लिए। आप प्रोडक्शन नहीं करते तो भी लगती थी,
कम करते तो भी लगती थी, ज्यादा करते तो भी वो 1 लाख ही लगती थी। कौन सी? फिक्स कॉस्ट। तो ये प्रोडक्ट बनाने की वजह से जो खर्चा लगा वो सिर्फ 40 रुपीज है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग वाला कहेगा कि वो जो 40 रुपीज लगा है वो तो प्रोडक्ट कॉस्ट है, और वो जो 1 लाख रुपीज खर्चा लगा है वो 1 साल की कॉस्ट है, वो पीरियड की कॉस्ट है, टाइम पीरियड की कॉस्ट है, प्रोडक्शन की कॉस्ट नहीं है। इट्स अ कॉस्ट रिलेटेड टू द टाइम पीरियड। सो मार्जिनल कॉस्टिंग विल से इट्स अ पीरियड कॉस्ट, सो इट विल नॉट अटैच द फिक्स कॉस्ट टू द प्रोडक्ट। वो जो फिक्स कॉस्ट है वो प्रोडक्ट को अटैच करेगा ही नहीं। कौन? मार्जिनल कॉस्टिंग वाला। अब इससे क्या होगा? इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट अ टोटल कॉस्ट अंडर अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड इट इज वैल्यूड एट अ वेरिएबल कॉस्ट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। मीनिंग हमने अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी निकाली थी? 40 + 10 = 50, बराबर? यहां तक तो याद है। अब आपने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, उसमें से 6,000 सेल किए, तो आपके स्टॉक या इन्वेंट्री बच गई कितने की? 4,000। अब आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन करना है, तो ये 4,000 यूनिट्स किस रेट पे वैल्यू होंगे? 50 रुपीज अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, सॉरी अंडर अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, और अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग 40 रुपीज, क्योंकि उसने फिक्स कॉस्ट अटैच की नहीं ना प्रोडक्ट को। तो सेम 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, 6,000 सोल्ड, 4,000 क्लोजिंग स्टॉक विल बी वैल्यूड अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग एट 40, यानी एट वेरिएबल कॉस्ट, और इन अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग इट विल बी वैल्यूड एट 40 + 10 दैट इज 50। ये फर्क है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में आएगा, उसकी वजह से प्रॉफिट में भी आएगा। इसका मतलब ये वैल्यू ऑफ स्टॉक इज ऑलवेज हायर अंडर अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग। उसमें फिक्स कॉस्ट भी एडेड रहेगी, तो वैल्यू कभी भी ज्यादा ही रहेगी अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में एज कंपेयर टू मार्जिनल। तो स्टॉक वैल्यू अंडर अब्सॉर्प्शन विल ऑलवेज बी हायर एज कंपेयर टू मार्जिनल, ऑलवेज। और यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा रहेगी तो ओपनिंग की भी ज्यादा ही रहेगी। तो स्टॉक ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो, स्टॉक की वैल्यू अब्सॉर्प्शन में ज्यादा और मार्जिनल में कम, और डिफरेंस कितने का? इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, क्योंकि एक तरफ फिक्स कॉस्ट इंक्लूडेड है, एक तरफ एक्सक्लूडेड है, तो फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस रहेगा वैल्यूएशन में। Absorption costing shows higher profits if production is more than sales. Absorption costing statement will show higher profit if production is more than sales. इसी को मैंने कहा है कि absorption costing rewards production, यानी प्रोडक्शन ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा। एग्जाम्पल के लिए हमने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस लिए और 6,000 यूनिट्स सोल्ड लिए, तो करंट ईयर में सेल कम हुआ, प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, तो प्रॉफिट किसका ज्यादा दिखाई देगा? एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग का। और मार्जिनल कॉस्टिंग में ज्यादा कब दिखाई देगा? मार्जिनल कॉस्टिंग शोज हायर प्रॉफिट इफ सेल्स इज मोर देन प्रोडक्शन, यानी मार्जिनल कॉस्टिंग रिवार्ड्स सेल्स, सेल्स ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा। कहां पर? मार्जिनल में। प्रोडक्शन ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा। कहां पर? एब्सॉर्प्शन। कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन आता है कि हाउ यू कैन सेल मोर देन व्हाट यू प्रोड्यूस आउट ऑफ ओपनिंग स्टॉक। आपके पास पिछले साल का 4,000 यूनिट का ओपनिंग स्टॉक पड़ा है, करंट ईयर में आपने 10,000 और प्रोड्यूस किए, तो 4,000 ओपनिंग प्लस 10,000 प्रोड्यूस, 14,000 यूनिट्स हो गए, आउट ऑफ विच यू हैव सोल्ड 12,000 और 2,000 का क्लोजिंग स्टॉक और बचा है। लेकिन नेक्स्ट ईयर में प्रोड्यूस तो 10,000 हुआ, सेल 12,000 हुआ, तो सेल इज मोर देन प्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट ईयर। इफ सेल्स इज हायर, मार्जिनल कॉस्टिंग शोज हायर प्रॉफिट। अब व्हाई? यदि एक लॉजिक लगा सकते होंगे तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हम प्रॉफिट कैसे निकालते, ध्यान रखना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट, और उसमें से फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है, उस पीरियड की फिक्स कॉस्ट उतनी है। अब ध्यान देना, मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट ज्यादा कब आएगा? जब कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, और कंट्रीब्यूशन ज्यादा कब होगा? जब सेल ज्यादा होगा। सोच लो, मार्जिनल कॉस्टिंग में सेल ज्यादा तो कंट्रीब्यूशन ज्यादा, और कंट्रीब्यूशन ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा। तो रिलेशन कहां हुआ? प्रॉफिट ज्यादा कब आएगा? जब सेल ज्यादा, सेल कम, कंट्रीब्यूशन कम, प्रॉफिट कम। दैट इज हाउ इट वर्क्स। अब हमने जो सिचुएशन ली थी उसमें से एक एक्सट्रीम सिचुएशन लेती थी, ध्यान देना। वो जो 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस थे और 6,000 सोल्ड थे, ऐसा करो 10,000 प्रोड्यूस्ड, नथिंग इज सोल्ड, नथिंग इज सोल्ड, पूरा स्टॉक में। तो आपकी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगी, वेरिएबल और फिक्स्ड, वो सब हम कैरी करके अगले साल ले जाएंगे एज अ क्लोजिंग स्टॉक। कहां पर? एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में पूरे 10,000 यूनिट स्टॉक में पड़े, वो 10,000 यूनिट अपने साथ पूरी कॉस्ट, यानी वेरिएबल और फिक्स दोनों कॉस्ट अगले साल ले जाएंगे, कैरी इट फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। लेकिन मार्जिनल में क्या होगा?
वो 10,000 यूनिट्स का जो स्टॉक पड़ा है पूरा का पूरा जो प्रोड्यूस किया था, वो अपने साथ क्या ले जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट को अगले साल ले जाएगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट इस पीरियड की इसी पीरियड में रहेगी, और इस पीरियड में सेल तो हुआ ही नहीं, तो कंट्रीब्यूशन विल बी जीरो, और फिक्स कॉस्ट पूरी इसी पीरियड को बेयर करनी है, तो एंटायर फिक्स कॉस्ट विल रिजल्ट इनटू अ लॉस, 1 लाख का लॉस आएगा। कुछ ध्यान में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग में कहते हैं मैक्सिमम लॉस इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग में मैक्सिमम लॉस इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। अरे भाई नो सेल, नो कंट्रीब्यूशन, बट फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन हियर, फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करने के लिए कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, सो एंटायर फिक्स्ड कॉस्ट विल रिजल्ट इनटू अ लॉस अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग इज प्राइमरीली यूज फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस, ये अकाउंटिंग के लिए पॉपुलर है, और मार्जिनल कॉस्टिंग इज पॉपुलर फॉर डिसीजन मेकिंग, ये सभी को पता है। फाइनल का मेजर स्ट्रेस है डिसीजन मेकिंग, और इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग में। लेकिन एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग अकाउंटिंग में कहां यूज होता है, एक बार रिकॉल करना। यू हैव स्टडीड लॉन्ग बैक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। AS2 says inventory should be valued at cost or net realizable value whichever is lower। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू तो आप निकालेंगे मार्केट प्राइस माइनस एक्सपेंसेस, सेल्स एक्सपेंसेस, वो तो NRV आ गई। कॉस्ट के साथ कंपेयर करना है ना, नेट रियलाइजेबल वैल्यू शुड बी कंपेयर्ड विद कॉस्ट टू टेक व्हिचएवर इज लोअर। कॉस्ट कैसे निकालते? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का यदि बहुत केयरफुली पढ़ा तो कॉस्ट निकालने के लिए उन्होंने तरीका दिया, दैट इज एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग। कभी घर जाके देख लेना, जैसे ग्रुप 1 हो गया होगा। कॉस्ट शुड बी कैलकुलेटेड यूजिंग एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, यानी उस इन्वेंट्री वैल्यूएशन में वो जो कॉस्ट है उसमें वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों है। अकाउंटिंग के लिए वही पॉपुलर है, डिसीजन मेकिंग के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग पॉपुलर है। हम मार्जिनल कॉस्टिंग को जनरली अकाउंटिंग के लिए यूज नहीं करते, यानी वो दो टेक्निक काय के लिए डिजाइन क्यों बताया मैंने। एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग पॉपुलरली यूज फॉर अकाउंटिंग पर्पस, मार्जिनल कॉस्टिंग पॉपुलरली यूज फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस। स्टेप लैडर कॉस्ट, ये क्वेश्चन थोड़े संभल के सॉल्व करना एग्जाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगता है। तो स्टेप लैडर का यदि क्वेश्चन आ गया तो बिगिनिंग में नहीं, एंड में लेना, उसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ टाइप ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट विच इज पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल। लेकिन इस कॉस्ट के साथ एक प्रॉब्लम है, दैट फिक्स्ड एंड वेरिएबल पार्ट्स आर नॉट सेपरेबल फ्रॉम ईच अदर, अलग अलग नहीं होते वो। और हमने एक बात की थी मार्जिनल कॉस्टिंग में, हर कॉस्ट के पहले दो हिस्से करो, वेरिएबल अलग, फिक्स्ड अलग। अब स्टेप लैडर कॉस्ट, दो इट इज सेमी वेरिएबल, इट कैनॉट बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, एंड इफ इट कैनॉट बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स यू कैनॉट गो अहेड विद द मार्जिनल कॉस्टिंग फॉर्मूली। तो ये कॉस्ट पहले तो ऑब्जर्व करना है कि क्वेश्चन में स्टेप लैडर कॉस्ट है क्या, पढ़ते समय ऑब्जर्व हो सकता है वो। हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। स्टेप लैडर कॉस्ट है तो वो नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, उसमें टाइम लगता है, वो ट्रायल एरर से सॉल्व होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को पहले तो एंड में रखना, बिगिनिंग में लेना ही नहीं। दिस कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट इन अ पर्टिकुलर रेंज, वो कॉस्ट किसी रेंज में कांस्टेंट रहती है, वो रेंज क्रॉस करने के बाद इट चेंजेस, मींस इट वेरीज, देन अगेन इट रिमेन्स कांस्टेंट इन अनदर रेंज, वो रेंज में कांस्टेंट रहती है फिर चेंज होती है, एंड सो ऑन। एक एग्जांपल लेते हैं। Assume that there is a mini bus which can accommodate 30 passengers. एक मिनी बस है which can accommodate 30 passengers, और हमको बस किराए पे लेना है। We want to hire that bus. We want to go somewhere. Your company hires this bus to bring the workers in the factory. You have to bring your workers into the factory by hiring that bus from the bus operator. Rent of the bus is rupees 50,000 per month. बस का रेंट है 50,000 पर मंथ, देन दिस रेंट कॉस्ट शेल बिकम अ स्टेप लैडर कॉस्ट। वैसे देखा जाए तो 50,000 पर मंथ तो आपको रेंट देना ही है, पर चाहे नंबर ऑफ वर्कर्स आपके फैक्ट्री में कितने भी आए, 1 आए, 2 आए, 10 आए, लेकिन कितने तक आ सकते, बस की कैपेसिटी कितनी है, 30 है ना, तो 30 वर्कर्स तक तो वो कॉस्ट फिक्स्ड रहेगी, क्योंकि कैपेसिटी बस की 30 है। आपको 30 वर्कर से ज्यादा को फैक्ट्री में लाना हो तो और एक बस लेनी पड़ेगी ना, यानी कॉस्ट चेंज हो गई ना, कॉस्ट इज गेटिंग डबल्ड, तो वो फिक्स्ड परमानेंटली नहीं है ना। इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखो, नंबर ऑफ वर्कर्स ले रहा हूं मैं एक्स एक्सिस पे, और रेंटल कॉस्ट ऑफ द बस ले रहा हूं वाई एक्सिस पे। 0 to 30 वर्कर्स तक दिस कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट, हाउ मच, 50,000 रेंट।
30 वर्कर से ज्यादा हो गए तो दिस कॉस्ट विल चेंज. It will become 1 lakh. It will remain constant up to how many workers? 60 workers now. यानी 31 to 60 वर्कर्स वो खर्चा फिर से कांस्टेंट हो गया उस रेंज में, लेकिन इस रेंज को क्रॉस किया, 60 वर्कर से ज्यादा एम्प्लॉय कर दिया अपने कंपनी में, तो यू विल हैव टू हायर थर्ड बस. सो दिस कॉस्ट विल अगेन जंप. इट विल बिकम 1,50,000. इट विल अगेन रिमेन कांस्टेंट अप टू हाउ मेनी वर्कर्स? 90. यानी किसी पैच में रेंज में कांस्टेंट है, 1 to 30 वर्कर्स तक कांस्टेंट है, फिर 31 to 60 फिर कांस्टेंट है, 61 to 90 तक कांस्टेंट है, लेकिन बीच बीच में चेंज भी हुई ना. और ध्यान रहे ये जो ग्राफिकल पैटर्न है, इसका पैटर्न आता है लाइक स्टेप्स ऑन द लैडर. ये देखो ना, ये स्टेप्स ऑन द लैडर टाइप दिखेगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्टेप लैडर कॉस्ट. ये कॉस्ट एक तो पहली बात तो स्ट्रेट लाइन नहीं है. स्ट्रेट लाइन रही तो हम उसको लीनियर कॉस्ट बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन. लीनियर कॉस्ट गिव्स यू द ग्राफ, इफ इट इज प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ गिव्स यू अ शेप ऑफ स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये वेरिएबल और फिक्स में अलग अलग नहीं होती. तो इस टाइप की कॉस्ट आपने ऑब्जर्व करना है क्वेश्चन में, और फिर उसका अप्रोच सॉल्विंग का. Whenever there is a step ladder cost given in the question, it cannot be solved using normal technique. Normal formula से solve नहीं होता, because we cannot divide the cost in two parts, variable and fixed. Hence, the approach used in solving such question is trial and error. You may either treat the step ladder cost as variable cost, और try कर सकते हैं आंसर, और and try the answer, or treat it as fixed cost and then try the answer. और कोई रास्ता नहीं है. आप इस स्टेप लैडर कॉस्ट को है तो वेरिएबल कॉस्ट ट्रीट करो. यानी कैसे? वो जो 50,000 रेंट है वो 30 वर्कर्स में बांट दो, अज्यूमिंग कि वर्कर्स विल बी इन मल्टीपल्स ऑफ 30 इस क्वेश्चन में, तो कॉस्ट वेरिएबल हो जाएगी. या उसको टोटल फिक्स ट्रीट करो, लेकिन फिर आपको बसेस डिसाइड करनी पड़ेगी कि हम एक बस ले जाएंगे, 2 ले जाएंगे, 3 ले जाएंगे. बसेस पता होगी तो वो कॉस्ट फिक्स रहेगी. तो या तो आपको उसको वेरिएबल ट्रीट करना पड़ेगा या फिक्स्ड, और ट्राई करके देखना पड़ेगा. पहले ट्रायल में आंसर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, नहीं आया तो दूसरा ट्रायल करना पड़ता है. वो मैं अब यहाँ नहीं करने वाला वन डे रिवीजन में, क्योंकि वो क्वेश्चन को सॉल्व करने को ही आधा 1 घंटा लग जाता है ट्रायल करते करते कभी कभी, राइट. बट आई एम जस्ट गिविंग यू दैट गेस. इफ यू हैव सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन योर रेगुलर बैचेस, जस्ट इमेजिन either you can solve it using variable, treating it as variable approach, or treating it as fixed, either or. लेकिन straight forward ये आंसर नहीं आते. Another important area, relevant irrelevant costing, जो एक बार डिस्कस हो चुका है हमारा. ये जो relevant irrelevant costing के क्वेश्चन में, उसमें मेजॉरिटी डेटा आपका irrelevant रहता है. We continue. Relevant irrelevant costing में majority questions और majority data given in the question will be irrelevant. वो आपने ध्यान से identify करना है. Your skill lies in separating the relevant data from irrelevant data to be used for the purpose of decision making. ये एक बार फिर से पूरा चार्ट रिवीजन के लिए, नाम अलग अलग यूज होते हैं, ये एक बार हो चुका है हमारा. फ्यूचर कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट टू बी इनकर्ड, क्योंकि अभी वो आपके हाथ में है, वो खर्चा करना या नहीं, दैट इज ऑलवेज बी रेलेवेंट. पास्ट कॉस्ट, ऑल्सो नोन एज सम कॉस्ट, जो खर्चा हो चुका, दैट इज ऑलवेज इररेलेवेंट. जो हो चुका उसको भूल जाओ, जो आगे लगने वाला है वो बचा सकते हैं आप. अवॉइडेबल कॉस्ट यानी डिस्क्रिशनरी कॉस्ट इज रेलेवेंट. अनअवॉइडेबल कॉस्ट, दैट इज नॉन डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, इज इररेलेवेंट. कॉस्ट विच चेंजेस ड्यू टू डिसीजन, डिसीजन की वजह से जो कॉस्ट चेंज होती है, दैट इज रेलेवेंट. एंड द कॉस्ट विच रिमेन्स सेम रिस्पेक्टिव ऑफ योर डिसीजन इज इररेलेवेंट. इंक्रीमेंटल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट इज रेलेवेंट. नॉन इंक्रीमेंटल कॉस्ट, नॉट एन एडिशनल कॉस्ट, इज इररेलेवेंट. स्पेसिफिक ओवरेज इनकर्ड स्पेसिफिक टू दैट डिसीजन आर ऑलवेज रेलेवेंट. और जो कॉमन खर्चा है या जनरल खर्चा, 3-200 की स्टोरी सुनी थी आपको, कॉमन या जनरल खर्चा या उसको ओवरहेड्स अब्सॉर्ब भी बोलते हैं. कॉमन खर्चे में से आप ओवरहेड रिकवरी रेट निकाल के ओवरहेड्स अब्सॉर्ब करते हैं, वो सब इररेलेवेंट है. तो डेटा पढ़ते समय देखना है कि वो ओवरहेड्स अब्सॉर्ब वाले हैं तो इररेलेवेंट, स्पेसिफिकली लग रहे हैं तो रेलेवेंट, राइट. रेलेवेंट इररेलेवेंट कॉस्टिंग के क्वेश्चन में एक और इंपॉर्टेंट डिस्कशन है रेलेवेंट इररेलेवेंट कॉस्टिंग में. Sometimes you are given a situation that there is some material which is lying in your stock. एक एग्जांपल लेते हैं.
एक कस्टमर का ऑर्डर आया था आपको. फॉर दैट ऑर्डर यू हैड परचेज्ड 10,000 kgs ऑफ रॉ मटेरियल, out of which 10,000 kg you have already consumed 9,000 kg of raw material in executing that customer's order, and you are left with a stock of 1,000 kg which was purchased at the rate of 10 per kg. आपने वो रॉ मटेरियल क्या रेट से परचेज किया था? 10. हम इसको बोलेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट या बुक वैल्यू. परचेज किया था 10 पर केजी के रेट से, और वो 1000 केजी मटेरियल आपके पास बच गया है स्टॉक में. सिचुएशन पहले समझना. अब किसी दूसरे कस्टमर की इंक्वायरी आई है कि आप हमारे लिए भी कोई प्रोडक्ट बना के देंगे क्या, और देंगे तो क्या चार्ज लेंगे हमसे. दे आर आस्किंग यू द कोटेशन. अब वो कोटेशन देने के लिए आपको पहले उस कस्टमर की जो ऑर्डर है, नेक्स्ट कस्टमर की, उस ऑर्डर के लिए रेलेवेंट कॉस्ट कितनी लगेगी निकालना है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट. उसमें कुछ इंक्रीमेंटल प्रॉफिट ऐड करना है, एंड देन यू विल कोट अ प्राइस. ना ये जो मटेरियल बच गया आपके पास 1000 kg, ये मटेरियल उस ऑर्डर में भी यूज हो सकता है. उस ऑर्डर में मैं कस्टमर बी का ऑर्डर बोलता हूं. ए के ऑर्डर के लिए आपने वो खरीदा था, उसमें से 1000 kg बच गया. खरीदा था क्या रेट से? 10 पर kg. वो मटेरियल बी के ऑर्डर में यूज हो सकता है. अब अकाउंटेंट से यदि आप पूछेंगे कि बी के ऑर्डर के लिए यदि मैं 1000 kg यूज करूं तो मैंने कितना खर्चा उधर अकाउंट फॉर करना चाहिए, तो बोलेगा बहुत ही सिंपल है, 1000 kg इंटू ₹10. उसमें कुछ भी गलत नहीं बोल रहा है, अकाउंटिंग के लिए बराबर है. डिसीजन मेकर के एंगल से बराबर नहीं है. डिसीजन मेकर का कहना है कि ये जो 10 रुपीज में खर्चा कर चुका वो तो संक कॉस्ट है. मैंने कस्टमर बी के लिए की क्या वो कॉस्ट खर्चा? नहीं, वो तो खर्चा हो चुका. तो वो 10 रुपीज पर kg इंटू 1000 kg, वो जो खर्चा बी के लिए नहीं कर रहा हूं, इसलिए वो बी के लिए रेलेवेंट नहीं है. फिर रेलेवेंट क्या है तो वो देखना है हमको. तो पहली बात तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट या बुक वैल्यू विच इज अ संक कॉस्ट, इट इज ऑलवेज इररेलेवेंट. इसको इग्नोर करना. अकाउंटेंट के एंगल से सोचना ही नहीं, बिजनेसमैन के एंगल से सोचना. इट्स ऑलवेज अ संक कॉस्ट. अब दो चीजें रेलेवेंट हो सकती है. उस मटेरियल को बेच के कुछ पैसे मिलने वाले होंगे तो वो रेलेवेंट हो सकता है, या उस मटेरियल को आज रिप्लेस करने जाऊं तो कितने में मिलेगा, वो रेलेवेंट हो सकता है. एक है रियलाइजेबल वैल्यू, ये भी दी जाएगी क्वेश्चन में. रियलाइजेबल वैल्यू इज सेल वैल्यू. सपोज इफ यू सेल दैट रॉ मटेरियल इन द मार्केट टुडे एंड इट विल फेच यू ₹8 पर kg. वो जो बचा हुआ 1000 kg उसको यदि आप बेचने जाएंगे तो 8 पर kg मिलेगा, यानी 1000 kg का कितना मिलेगा? 8000. This 8000 will be relevant cost for the order of customer B only if the material has no alternative use. यानी यदि कस्टमर बी का ऑर्डर नहीं मिले तो उस मटेरियल का और कोई यूज नहीं है. यदि बी के ऑर्डर में यूज नहीं किया तो मेरे पास बेचने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है. ऐसी यदि सिचुएशन है क्वेश्चन में तो 8000 विल बिकम रेलेवेंट, यानी 8 रुपीज पर kg. क्यों? यदि कस्टमर बी का ऑर्डर में एक्सेप्ट नहीं करूं तो मैं क्या करूंगा, वो 1000 kg को 8 रुपीज से बेच के 8000 कमा लूंगा. और यदि कस्टमर बी का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो ये 8000 कमाने का चांस गया, तो ये 8000 में उससे वसूल करूंगा. किससे? कस्टमर बी से. तो बी की कॉस्ट में 8000 ऐड कर दूंगा. अरे एक ही बात हो गई ना. 10,000 तो छोड़ दो, 10 रुपीज पर kg तो छोड़ दो, तो सम कॉस्ट है. वो रेलेवेंट कब रहती है? यदि बी का ऑर्डर लेने के बाद में खरीदने जा रहा हूं तो. अरे वो तो स्टॉक में पड़ा हुआ मटेरियल है जिसपे खर्चा ऑलरेडी हो चुका है. मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, तो हिस्टोरिकल तो रिलेवेंट हो गई. अब बी के ऑर्डर में यदि मटेरियल यूज नहीं किया तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है बेचने के अलावा, और बेचने जाऊंगा तो 8 रुपीज पर kg से बिकेगा. तो 8000 या तो बेच के ले लूं या 8000 कस्टमर बी से वसूल कर लूं, दोनों बात एक ही है. तो ये रेलेवेंट हो गया. तीसरा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट. रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब होता है लेटेस्ट परचेस प्राइस. पहले ये समझ लो, लेटेस्ट परचेस प्राइस है ना, ये मटेरियल आज खरीदने जाऊंगा तो कितने में मिलेगा मार्केट में. जब खरीदा था तब 10 रुपीज का था, आज अभी इस मोमेंट पे खरीदने जाओ तो कितने मिलेगा, तो समझो 12 पर kg. यानी ये मटेरियल को आज यदि मैं दूसरे मटेरियल से रिप्लेस करूं सिमिलर मटेरियल से तो पैसा कितना लगेगा, 12 पर kg. समझो, यानी 12,000 रुपीज फॉर 1000 kg. तो इसको हम बुलाते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट. ये कब रेलेवेंट है ध्यान देना. इट इज रेलेवेंट ओनली इफ द मटेरियल इज ऑफ रेगुलर यूज and its consumption will necessitate additional purchase.
मीनिंग ये मटेरियल रोज ही लगते रहता है। यदि कस्टमर बी के ऑर्डर में यूज नहीं किया तो सी के ऑर्डर में करूंगा, सी के ऑर्डर में यूज नहीं किया तो डी के करूंगा, लगते ही रहता है मटेरियल। रेगुलर यूज वाला मटेरियल बार बार खरीदना पड़ता है। जैसे कोई फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है तो प्लाईवुड उसको लगते ही रहता है, किसी एक कस्टमर के ऑर्डर के लिए नहीं तो दूसरे कस्टमर, प्लाईवुड लगने वाली चीज है। तो ध्यान देना फिर से क्या बोल रहा हूं मैं। यदि बी के ऑर्डर में यूज नहीं किया ये मटेरियल तो किसी और ऑर्डर में यूज हो सकता था, सी के ऑर्डर में यूज हो सकता था या और किसी डी ऑर्डर में यूज हो सकता था। तो रेलेवेंट कॉस्ट होगी 12 पर केजी इंटू 1000 केजी, दैट इज 12,000। अब ये एकदम से सेट नहीं होता दिमाग में, 12,000 कैसे क्या? वो इसलिए कि द मोमेंट यू यूज दिस मटेरियल फॉर एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर ऑफ बी, फॉर नेक्स्ट ऑर्डर यू हैव टू बाय फ्रेश, और वो फ्रेश क्वांटिटी अब खरीदने जाएंगे तो 12 रुपीज पर केजी से आएगी। तो आपको एडिशनल खर्चा जेब से कितना लग गया? 12 पर केजी, क्योंकि आपने वो बी के ऑर्डर में कंज्यूम कर लिया इसलिए। और बी के ऑर्डर में कंज्यूम नहीं करते तो ये 12 रुपीज पर केजी का मटेरियल खरीदना नहीं पड़ता। यू कुड हैव अवॉइडेड दैट कॉस्ट। तो वो रेलेवेंट है। वो 10 रुपीज तो छोड़ ही देना, वो तो सन कॉस्ट है। तो बी के ऑर्डर में कंज्यूम करने से अगले ऑर्डर के लिए फिर खरीदना पड़ेगा। इट विल नेसेसिटेट एडिशनल परचेस, और एडिशनल परचेस करने जाएंगे तो 12 रुपीज केजी लगेगा। और वही कंज्यूम नहीं करते तो 12 रुपीज पर केजी बच जाता, कुड हैव बीन अवॉइडेड। सो दिस विल बिकम अ रेलेवेंट कॉस्ट। तो सिचुएशन देखना है, बहुत सिंपल है। कोई अल्टरनेटिव यूज नहीं रहा तो रियलाइजेबल वैल्यू यानी सेल वैल्यू रेलेवेंट, और वो रेगुलर यूज का मटेरियल रहा बार बार लगने वाला तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज रेलेवेंट। कुछ याद आ रहा है कि देखना भाई, पढ़े हुए होंगे क्वेश्चन। तो पर्पज इज रिकॉलिंग ओनली एंड नॉट लर्निंग अगेन। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को हम ब्रेक के बाद ले तो ठीक रहेगा, राइट।